Welcome to the advanced level class of quadratic equations in SNP। और हम इस क्लास में एडवांस लेवल पे जो क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट होंगे इन दोनों चैप्टर्स के वो हम प्रैक्टिस करने वाले हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। मैंने आपके सामने दो क्वेश्चंस लिखे हैं। मैं पैटर्न यही रहेगा, मैं आपके सामने बोर्ड पर कुछ कुछ क्वेश्चंस लिखता रहूंगा, आप खुद ट्राई करिए, फिर मैं आपको उनके प्रॉपर सॉल्यूशंस और उनके आंसर्स जो है वो बताता जाऊंगा। राइट, तो आप क्वेश्चंस नोट करें, वीडियो पॉज करें, खुद ट्राई करें, इसी से आपको सबसे बढ़िया सीखने को मिलेगा। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन है, अच्छा जो फर्स्ट क्वेश्चन है बेटा क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का, ऐसा क्वेश्चन एक बार 2010 या 11 में एडवांस में इसी पैटर्न पे क्वेश्चन पूछा गया है, तो उसी से मिलता जुलता कुछ ये क्वेश्चन भी है। If PQRS are distinct positive reals such that PQ are the roots of a quadratic equation. So, for the first equation, we have been given that P and Q are the roots of this equation. So that means we can write sum of the roots. P plus Q is equals to 10 times R, and P into Q, product of the roots, is minus 11S. Similarly, R and S are the roots of this equation. तो हम इस equation का भी sum of the roots, that is 10p and product of the roots rs, अभी हम ये सब चीजें लिख रहे हैं, we will see कि हमें किस किस की जरूरत इसमें पड़ेगी। ओके, then the value of q plus s minus 3 times p minus 3 times r, इसकी वैल्यू में फाइंड करनी है। राइट, so one thing, q plus s, see what you can do, if you add these two equations you will get p plus q plus r plus s is 10 times p plus r. 1p and r you can cancel from here, so you'll get q plus s is 9 times p plus r. Okay, you get q plus s is 9 times of p plus r. So what you can see is, we can make use of that. We have to find the value of q plus s minus 3 times p plus r. If you put q plus s as 9 times p plus r, so this effectively becomes 6 times p plus r. So अब हमारा फोकस p plus r की वैल्यू फाइंड करने के लिए होना चाहिए। राइट, नाउ what I'll be doing is, यहाँ टर्म्स देखिए बेटा, द मिडिल टर्म हेयर इज माइनस 10 आर एक्स एंड हेयर इट इज माइनस 10 पी एक्स। इसके रूट्स पी एंड क्यू है और इसके रूट्स आर और एस है, तो अगर मैं इस इक्वेशन में पी रखता हूं तो आई विल गेट 10 पी आर हेयर, एंड इफ आई पुट आर इन दिस इक्वेशन बिकॉज इट्स अ रूट, आई विल गेट माइनस 10 पी आर हेयर। सो इससे हमें ये पता चल गया कि दोनों की मिडिल टर्म सेम हो जाएंगी एक एक रूट रखने पे। तो मैंने पहले p को इस क्वाड्रेटिक में रखा, तो आई विल गेट पी स्क्वायर माइनस 10 टाइम्स पी आर minus 11s equals to 0. And if I put r in this quadratic, I'll get r square minus 10pr minus 11q equals to 0. And I will be subtracting these two equations. ये cancel हो जाएगा. Here I will be getting p square minus r square plus, or you can take minus 11 common, plus 11 times of q minus s equals to 0. ठीक है भाई, ये माइनस था, माइनस माइनस जो था ये प्लस हो गया था बेसिकली, तो प्लस 11 टाइम्स क्यू माइनस एस इक्वल टू 0। नाउ पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर को हम कैसे लिख सकते हैं बेटा, पी प्लस आर इंटू पी माइनस आर प्लस 11 टाइम्स क्यू माइनस एस इक्वल टू 0। मतलब हमें कहीं से अगर यहाँ से p प्लस आर निकालना है, हमें q माइनस एस भी चाहिए। नाउ सी व्हाट यू कैन डू, लेट्स से दिस इज इक्वेशन 1 एंड दिस इज इक्वेशन 2। अगर मैं 1 और 2 को सब्ट्रैक्ट भी करता हूँ, so p plus q minus r minus s will become 10r minus 10 times p. Take r and p on other side, you will get q minus s as 11 times of r minus p. So what we can do is, we can put the value of q minus s here. Right, I will be putting the value of q minus s here. So I'll get p plus r into p minus r, 11 11s are 21, minus 121, माइनस मैंने इसको p माइनस r लिखने के लिए किया, p माइनस r is equals to 0. Clear? Now we can take p minus r common from it, and I'll get p plus r minus 121 equals to 0. Now you can see that this factor cannot be 0 because question has given that PQR as a distinct reals. Distinct, that means p and r cannot be equal. So I will get the value of p plus r as 121 from here. And if I get the value of p plus r as 121, so we need to find the value of q plus s minus 3p minus 3r. So the q plus s is 9 times of p plus r minus 3 times of p plus r.
6 times of p plus r, that is 6 into 121. 6 to the 12 and 726. So the correct option will be option number 2. क्लियर है बेटा? जैसे मैंने बोला एडवांस में भी ये क्वेश्चन था, तो इसमें बेसिकली एलिमिनेशन प्रोसेस क्या है, कैसे सम ऑफ द रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स और उसके थ्रू हम आगे बढ़ रहे हैं और एलिमिनेट कर रहे हैं, और फाइनली हम इस एक्सप्रेशन की वैल्यू तक पहुंच रहे हैं, इज व्हाट इज इंपॉर्टेंट, राइट? तो मुझे अच्छा लगता है ये क्वेश्चन एलिमिनेशन वगैरह के कारण, तो दैट्स व्हाई ये क्वेश्चन हमने किया, राइट? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं बेटा. हाँ, दिस इज रिलेटेड विद सीक्वेंस एंड प्रोग्रेशन. Let us read the question. A, B, C, D are four distinct consecutive real numbers in AP. Basically, there are four consecutive real numbers in AP. है ना? They are मतलब A plus D, A plus 2D, A plus 3D like that. And you have been given an equation satisfying A, B, C, D इनको satisfy करते हैं. 2 times A minus B plus X times B minus C whole square and so on, so on, so on. So you have to find what will be the range of value of X. What will be the range of value of X? Okay. चलिए. Let us start solving this question also. So सबसे पहले हमें जो ये numbers AP में दे रखे हैं ना, consecutive numbers हैं ये AP के. So A, B को I can take as A plus D, C को I can take as A plus 2D and D, और यहाँ ना थोड़ा चेंज करो, A plus alpha ले लो चलो, या A plus X ले लो, X भी alpha ही ले लो, A plus 2 alpha and D equals to A plus 3 alpha, right? Now I will be substituting the values of A, B, C and D in this equation. So 2 times of A minus B is minus alpha plus X times B minus C. Now what is B minus C? It will be alpha, so it will become alpha square plus C minus A. Now C minus A is what? 2 alpha, so it is 2 alpha cube, that is 8 alpha cube is equals to, now 2 times of A minus D. A minus D is minus 3 alpha, clear, plus B minus D ka whole square. B minus D, it is 2 alpha ka whole square, it will become 4 alpha square, and plus C minus D. Now C minus D, this becomes minus alpha cube, minus alpha cube, clear? थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं. minus 2 alpha plus x alpha square plus 8 alpha cube is equals to minus 6 alpha plus 4 alpha square minus alpha cube. ठीक है? And because they are distinct consecutive real numbers, that means alpha cannot be zero. The common difference of AP cannot be zero, तभी वो distinct हो पाएंगे. So you can cancel alpha from here, right? So you will get minus 2 plus x alpha plus 8 alpha square is equals to minus 6 plus 4 alpha minus alpha square. Now keeping x alpha here and taking every term on the other side. So 8 alpha square and minus alpha square minus 9 alpha square, clear, plus 4 alpha minus 6 and plus 2 minus 4. The value of x comes out to be minus 9 alpha square plus 4 alpha minus 4 upon alpha. Now you can write it as, if you divide by alpha, alpha is not 0, 4 minus 9 alpha plus 4 by alpha. Clear? We are getting the value of x like this. Now we need to find its range. Or one more thing, what you can do is, you can make it a quadratic in alpha. You can make it a quadratic in alpha, and then you can put its t greater than equals to 0 because d is real. You can find the range. One other thing, you can use AMGM. One when alpha is positive and one when alpha is negative. If alpha is positive, this इन दोनों का sum upon 2 होगा ना, process is always greater than right. I will, चलो मैं AMGM वाले तरीके से बता देता हूँ और क्वाड्रेटिक वाले तरीके से भी मैं समझा देता हूँ. तो इसमें पहला केस, यदि अल्फा पॉजिटिव है तो 9 अल्फा प्लस 4 by अल्फा अपॉन arithmetic mean of two positive numbers is always greater than equals to their geometric mean. इनका प्रोडक्ट होता है 9 4 36. तो 9 by alpha plus 4 by alpha is always greater than equals to 12. Clear? And if alpha is less than 0, so let us take alpha as minus t. तो वहां पे t पॉजिटिव हो जाएगा बेटा, करेक्ट है? तो ये x बन जाएगा 4 plus 9t plus 4 by t.
And now again by using AMGM same process you can say that this quantity is always greater than equal to 12. तो यहाँ पर ये होगा 4 plus 12 to infinity. That means range will be from close bracket 16 to infinity. है ना? और बेटा जब ये वाली वैल्यू 12 से इंफिनिटी होगी फर्स्ट केस में, है ना, यहाँ लिख देता हूँ, तो x की वैल्यू होगी 4 minus 12 to infinity है. So 4 minus 12 is minus 8. So x will be from minus infinity to minus 8. So this interval union this interval. So your correct answer will be option number A. And another way that I was telling about कि क्या कर सकते हो बेटा, जैसे ये है तो अल्फा स्क्वायर में क्वाड्रेटिक बना लो. क्या बनेगी अल्फा स्क्वायर में क्वाड्रेटिक? 9 alpha square. Clear? And you can take alpha on one side. If you take alpha common, it will be x minus 4 plus 4 is equal to 0. And then you apply d greater than equal to 0. So उसमें x में इक्वालिटी आएगी. x की इक्वालिटी को जैसे सॉल्व करोगे you'll get the same answer. Clear है? I hope आपके समझ में आया है how we will proceed in this question. So just nothing, we have substituted the values of a, b, c, d by assuming the terms, consecutive terms of ap, and then we have find x. Then they have two methods to find the range. You can use AMGM concept, or you can use the concept of quadratic that it is quadratic in alpha, then alpha real के लिए b greater than equals to 0. Okay? Okay students. अब हम करते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 3. इसमें हमें बोला है P1, P2, P3, P4 आर सच दैट ये दो इक्वेशंस को सेटिस्फाई करते हैं. A plus B1 P1B plus P2C equals to 0 and A plus P3B plus P4C equals to 0. And A, B, C, they satisfy this condition. 6C square minus A square minus 2B square minus AC plus 4BC plus 3AB equals to 0. तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी है जिसके रूट्स P1 minus P3 and P2 plus P4. तो बेटा देखो इस क्वेश्चन में देखकर हमें ये समझ में आना चाहिए कि हमें किसी भी तरह P1, P2, P3, P4 की वैल्यू निकालनी है. अच्छा P1, P2, P3, P4 की वैल्यू निकालने का मतलब देखिए सबसे पहले इसका मतलब ये जो कंडीशन दे रखी है इसको फैक्टराइज करके दो लीनियर टर्म्स में ब्रेक करना है. क्लियर? जैसे कई बार फैमिली ऑफ स्ट्रेट लाइंस वगैरह के ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, फैमिली ऑफ स्ट्रेट लाइन दिस पासेस थ्रू अ फिक्स पॉइंट, तो हम फैक्टराइज करके या वो पॉइंट जो है लाइन की फॉर्म में कन्वर्ट करके कंपेयर करना होता है. वैसे ही हम कुछ इसमें करने वाले. यहाँ देखिए यहाँ पर a है और यहाँ पर भी a लिखा हुआ है, तो मतलब वो जो दो लीनियर फैक्टर्स की हम बात कर रहे हैं उन दोनों लीनियर फैक्टर्स में यहाँ पर a आएगा. a और a मल्टीप्लाई होकर आ जाएगा a स्क्वायर. अच्छा ये जो कंडीशन है इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, देखो a स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर माइनस 6c स्क्वायर. ठीक है, उसके अलावा माइनस से मल्टीप्लाई कर दिए प्लस a इंटू सी माइनस 4b इंटू सी माइनस 3ab माइनस 3ab इज इक्वल टू 0. ठीक है, चलिए अब देखो बेटा जो चीज हमें देखनी है a और a से मल्टीप्लाई होकर a स्क्वायर तो आ गया. अच्छा अब यहाँ पर एक जगह b होना चाहिए और एक जगह 2b होना चाहिए. अब या तो दोनों प्लस होंगे या दोनों माइनस होंगे. देखो अगर दोनों प्लस होंगे तो ये दोनों मल्टीप्लाई होकर b इंटू 2b 2b स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर आएगा. दोनों माइनस होंगे तो भी माइनस माइनस मल्टीप्लाई होकर प्लस 2b स्क्वायर. एक प्लस एक माइनस होगा तो गड़बड़ हो जाएगी, वो टर्म नहीं बनेगी. इस बात का भी ध्यान रखना है कि आगे जब हम मल्टीप्लाई करें a से b, अच्छा देखिए अगर दोनों प्लस प्लस टर्म्स होंगे तो ab और प्लस ab करके आएगा, जबकि यहाँ पे माइनस 3ab चाहिए. इसका कंफर्म मतलब ये निकलता है कि यहाँ माइनस और यहाँ माइनस होना चाहिए. खुद सोचिए b इंटू दिस तो माइनस ab एंड दिस इंटू दिस इज माइनस 2ab, तो माइनस ab मिलके माइनस 3ab बनाएगा. अब हमें c की टर्म्स देखनी है. यहाँ पर है टोटल 6c स्क्वायर. अच्छा 6c स्क्वायर के साथ हो सकता है एक जगह 6c लिखा हो एक जगह c लिखा हो, और माइनस है तो एक जगह प्लस हो और एक जगह माइनस हो. ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई होके माइनस जो है 6c स्क्वायर तो बना ले. अच्छा इन दोनों से कितना आएगा बेटा? प्लस 6ac और माइनस ac. तो किसी भी तरह से ये जो है प्लस ac नहीं आ रहा है, ये प्लस 5ac आ रहा है. अच्छा अगर यहाँ प्लस करें और यहाँ 6 करें तो भी वही दिक्कत आएगी, माइनस 6ac और प्लस ac. इसका मतलब हमें 6 को डायरेक्ट नहीं करके उसके दो फैक्टर तोड़ने पड़ेंगे. समझ में आई बात? कैसे फैक्टर करें? एक जगह प्लस 3 कर दें और एक जगह माइनस 2 कर दें, तो प्लस 3ac और माइनस 2ac. तो प्लस 3ac और माइनस 2ac मिला के प्लस ac भी आ जाएगा. अच्छा ये हम जस्ट चेक कर दें कि ये हो रहा है नहीं हो रहा. आगे की टर्म्स चेक करें. अगर b और c के कोफिशिएंट्स ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो कितना आएगा बेटा? माइनस 6bc. ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो माइनस 6bc और ये मल्टीप्लाई होगा तो प्लस 2bc, तो माइनस 4bc हो गया. तो इनफैक्ट अगर हम फैक्टराइजेशन इसका करना चाहें तो इनके जो फैक्टर आ रहे हैं, ठीक है ना, वो क्या आ रहे हैं? a माइनस बी प्लस 3c इंटू a माइनस 2b माइनस 2c इज इक्वल टू 0.
ये हो गया बेटा गिवन कंडीशन को देखकर टर्म्स बनाने, जैसे बनाने हमें लीनियर, उसकी फॉर्म में हमने फैक्टराइज किया। अब अगर ये दो लीनियर फैक्टर में टूट गया तो इसमें से एक जो है वो इसके कंपेयर कर सकते हैं, और जो दूसरा वाला फैक्टर है उसको दूसरे फैक्टर से हम कंपेयर कर सकते हैं। तो अगर कंपेयर करें तो हम यहाँ से बोल सकते हैं P1 की वैल्यू हो जाएगी -1, P2 की वैल्यू हो जाएगी 3, P3 की वैल्यू हो जाएगी -2 और P4 की वैल्यू हो जाएगी -2। क्लियर है? P1, P2, P3, P4 ये हमने वैल्यू निकाली। अच्छा, ये और ये कंपेयर करते तो P1 की वैल्यू, ठीक है, अभी कर लेंगे। अब देखें P1 माइनस P3 कितना आ रहा है इसके अकॉर्डिंग। P1 माइनस P3 की वैल्यू 1 आ रही है और P2 प्लस P4 की वैल्यू भी 1 आ रही है। तो एक क्वाड्रेटिक बनानी है जिसके दोनों रूट्स 1 है, तो वो x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 इक्वल टू 0 बनी जाएगी। ठीक है, एक ऑप्शन तो हमारा जो है ये मैच कर रहा है। अच्छा, अब अगर ये वाला फैक्टर हम इसके बराबर करते बेटा, सेकंड केस, तो P1 की जो वैल्यू वो आ जाती -2 के बराबर और P2 की वैल्यू आ जाती -2 के बराबर। अच्छा, और हम इस वाले फैक्टर को इससे कंपेयर करते तो P3 की वैल्यू आ जाती -1 और P4 की वैल्यू आ जाती 3। अब हमें P1 माइनस P3 निकालना है, तो P1 माइनस P3 अगर आप करोगे दिस माइनस दिस तो ये -1 आएगा, और P2 प्लस P4 करोगे तो ये 1 आएगा। अब इससे क्वाड्रेटिक बनाओगे तो x स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 0 आएगी। क्वाड्रेटिक ये भी हो सकती है, पर अगर ऑप्शन में देखें तो हमें सिर्फ एक ही करेक्ट आंसर दोनों में से जो है वो दे रखा है। सो इसलिए इसका जो करेक्ट आंसर है बेटा वो बी ऑप्शन आएगा, x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 इक्वल टू। समझ में आया? ये जो फैक्टराइजेशन का प्रोसेस है ये इंपॉर्टेंट है। ये कितना फास्ट और कितना एक्यूरेटली हम कर पाते हैं, दैट इज व्हाट दिस क्वेश्चन रिक्वायर्स। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। अब क्वेश्चन नंबर 4 में देखिए क्या दिया है हमें। क्वेश्चन नंबर 4 में हमें दे रखा है कि x माइनस 1 का होल स्क्वायर जो है, x माइनस 1 होल स्क्वायर इज अ फैक्टर ऑफ अ क्यूबिक ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस c। तो देन द सम ऑफ द क्यूब्स ऑफ रूट्स ऑफ दिस क्यूबिक, इस क्यूबिक के जो रूट्स हैं उसके रूट्स का जो क्यूब होगा उनका सम जो है वो क्या होगा। ठीक है, अच्छा देखिए, अब इस क्वेश्चन को करने के लिए हमें बोल रहा है x माइनस 1 का होल स्क्वायर जो है वो इसका फैक्टर है ही है। x माइनस 1 का होल स्क्वायर इसका फैक्टर है। ठीक है, अगर x माइनस 1 इसका होल स्क्वायर इसका फैक्टर है, इसका मतलब x को 1 रखने पर इसको सेटिस्फाई करना चाहिए। तो हम अगर x को 1 रख देंगे तो a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0 आ ही जाएगा। अच्छा, और ये जो क्यूबिक है बेटा ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी इक्वल टू, क्या ये x माइनस 1 का होल स्क्वायर इंटू एक लीनियर फैक्टर के बराबर होगी कि नहीं होगी? अच्छा, वो जो लीनियर फैक्टर होगा, क्योंकि आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो आपको एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 मिलेगा, और ये ऐसा फैक्टर होना चाहिए कि मल्टीप्लाई होने पे ए एक्स क्यूब आ जाए। तो बेटा यहाँ ए एक्स का फैक्टर होना चाहिए, और कांस्टेंट सी आ जाए तो यहाँ प्लस सी होना चाहिए। तो इसका मतलब x इक्वल्स टू माइनस ए बाई सी भी इसका फैक्टर होगा। x इक्वल टू माइनस ए बाई सी भी इसका फैक्टर होगा। ठीक है, तो अगर आप इसमें x की जगह माइनस ए बाई सी जो है वो रख दो, अगर इसमें आप x की जगह माइनस ए बाई सी रख दो तो कितना आएगा बेटा अपने पास? माइनस ए रेस पर 4 अपॉन सी क्यूब प्लस बी ए स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर प्लस सी इज इक्वल टू 0। ठीक है, मैंने x की जगह माइनस ए बाई सी रख दिया, तो ए क्यूब बाई सी क्यूब आया था, एक से मल्टीप्लाई हुआ, फिर ए स्क्वायर बाई सी स्क्वायर आया तो बी टाइम्स ए स्क्वायर बाई सी स्क्वायर प्लस सी। तो माइनस ए रेस पर 4 प्लस बी ए स्क्वायर सी प्लस सी रेस पर 4 इज इक्वल टू 0। क्लियर है? एक हमारे पास इस टाइप की इक्वेशन जो है वो निकल के आ जाए। अब हमें एक ऐसी इक्वेशन चाहिए जाकि इसके हम जो है रूट्स जो है वो फाइंड कर सके। ठीक है, तो हम एक काम क्या कर सकते हैं, ये तो ठीक है, चलो एक कंडीशन आ गई, इसका यूज देखेंगे, और एक अपन इनको मल्टीप्लाई करके कंपेयर भी कर सकते हैं। ठीक है, तो वो हम काम करके देख लेते हैं। अगर हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा बेटा? ए एक्स क्यूब आएगा माइनस 2 ए एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स। ठीक है, और सी से मल्टीप्लाई होगा तो प्लस सी एक्स स्क्वायर माइनस माइनस 2cx प्लस सी आएगा। ठीक है, और ये वैल्यू किसके बराबर होगी? ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी के। तो ए एक्स क्यूब प्लस सी से ए एक्स क्यूब प्लस सी तो कैंसिल हो जाएगा। अच्छा, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट अगर कंपेयर करा जाए तो यहाँ से b इज इक्वल टू, यहाँ से एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना है बेटा? c माइनस 2a के बराबर है। ठीक है, और एक x का कोफिशिएंट, यहाँ से x का कोफिशिएंट कितना आ रहा है? c
माइनस ए माइनस टू सी, ए माइनस टू सी, वो कितना आ रहा है, 0 आ रहा है। तो बेटा अपन को खूब सारी इक्वेशंस पता चल गई, डी माइनस दिस ये पता चल गई, एक ए प्लस बी प्लस सी। तो अगर अपन देखें तो इसकी जरूरत नहीं भी चलेगा, इसको अगर मैं हटा भी दूं तो इसकी जरूरत नहीं पड़ रही। ठीक है, क्या किया मैंने, पहले तो x इक्वल टू 1 रूट था वो रख दिया, उसके अलावा x माइनस 1 होल स्क्वायर जब इसका फैक्टर था तो जो बचेगा वो लीनियर। अब मैंने देखा ax क्यूब बनाना है तो यहाँ ax होना चाहिए ताकि x स्क्वायर से मल्टीप्लाई होकर ax क्यूब आए और कांस्टेंट प्लस 1 से मल्टीप्लाई होकर c आए। मल्टीप्लाई कर दिया, ax क्यूब माइनस 2ax स्क्वायर प्लस ax प्लस सी एक्स स्क्वायर माइनस 2cx प्लस सी, ax क्यूब प्लस c कट जाएगा, x स्क्वायर का कोफिशिएंट माइनस 2a प्लस सी, तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट माइनस 2a प्लस सी बी के बराबर और a माइनस 2c जो है वो 0 के बराबर। सो इससे व्हाट वी कैन डू इज वी कैन गेट द वैल्यू ऑफ a b c। a आ गया हमारे पास 2c के बराबर। ठीक है, अच्छा a की जगह अगर मैं यहाँ 2c रख दूं इस इक्वेशन, तो b इज इक्वल टू c माइनस a की जगह 2c रखा है तो 4c हो जाएगा, तो b बिकम्स माइनस 3c। a और b की वैल्यू हमें पता चल गई। ठीक है, अच्छा अब अगर हम इसको इस क्यूबिक पर रख देते हैं, सो व्हाट विल बी द क्यूबिक, सी एक्स क्यूब बी की जगह माइनस 3cx और a की जगह प्लस 2c इज इक्वल टू 0। c कट जाएगा बेटा, क्यूबिक मैं यहाँ लिख लेता हूँ, एक्स क्यूब माइनस 3c माइनस 3x प्लस 2 इक्वल टू 0। सो हिट एंड ट्रायल से आप देख पा रहे हो x माइनस 1, x को 1 रखने पे इसका फैक्टर आ रहा है और x माइनस 1 इसका एक फैक्टर x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 2 इक्वल टू 0। इसके जो फैक्टर्स आ रहे हैं x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 2 इक्वल टू 0। तो रूट्स आर 1 1 एंड माइनस 2। तो हमें इसके रूट्स के क्यूब का सम पूछा है, तो 1 क्यूब प्लस 1 क्यूब माइनस 2 का क्यूब, आंसर विल बी माइनस 6। क्लियर है, दिस इज हाउ वी विल प्रोसीड। एक्स को 1 रखा, एक बार लीनियर फैक्टर मान के मल्टीप्लाई करके कंपेयर कर लिया, तो उससे हमें टोटल 3 रिलेशंस पता चल गए। इन तीनों रिलेशन से हमने इस इक्वेशन में वैल्यूज जो है वो सब्स्टिट्यूट कर दी, तो पूरी एक वेरिएबल में आ गया जिससे हम रूट्स निकाल पाए। रूट्स निकल गए तो क्यूब करके सम निकाल लिया। क्लियर, चलिए एक और क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। यू हैव टू फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ लैम्डा इनटू म्यू इनटू वी। लैम्डा इनटू म्यू इनटू वी की मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है जब लैम्डा स्क्वायर अपॉन d1 स्क्वायर प्लस म्यू स्क्वायर अपॉन d2 स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर अपॉन d3 स्क्वायर की वैल्यू 1 है। अब देखो बेटा, जब भी ऐसे मिनिमम मैक्सिमम की कोई ना कोई क्वेश्चन पूछते हैं तो हमारा जो थॉट है वो थॉट जो है डायरेक्टली एक बार एएमजीएम वाले कंसेप्ट पे जाना चाहिए। हमें कुछ क्वांटिटीज का सम, अच्छा ये क्वांटिटीज पॉजिटिव है ना, सब होल स्क्वायर है तो सब पॉजिटिव है, और उनके प्रोडक्ट की मैक्सिमम वैल्यू निकालनी, तो कंफर्म हम इसमें am ग्रेटर देन इक्वल टू gm का कंसेप्ट से प्रोसीड कर सकते हैं। तीन टर्म्स मैंने कंसीडर किए, लैम्डा स्क्वायर अपॉन d1 स्क्वायर, म्यू स्क्वायर अपॉन d2 स्क्वायर एंड v स्क्वायर अपॉन d3 स्क्वायर। इनका अरिथमेटिक मीन कितना होगा भाई, इन तीनों का सम जो कि हमें 1 गिवन बाय 3 ग्रेटर देन इक्वल टू, इनका प्रोडक्ट लैम्डा म्यू v अपॉन d1 d2 d3 रेज टू द पावर 2/3 हो जाएगा। स्क्वायर तो ऑलरेडी था और तीन टर्म से तो 1/3 हो जाएगा। क्लियर है, सो यू हैड टू फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ लैम्डा इनटू म्यू इनटू v। तो सबसे पहले अगर मैं क्यूब करता हूं तो 1/27 इज ग्रेटर देन इक्वल टू लैम्डा म्यू v अपॉन d1 d2 d3 की पावर स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ से लैम्डा म्यू v अपॉन d1 d2 d3 इज लेस देन इक्वल टू कितना हो जाएगा भाई, ये 1 अपॉन अंडर रूट 27। So lambda into mu into v is always less than equals to d1 d2 d3 upon 3 root 3. Correct? Root 27 को ऐसे लिख सकता हूँ. So you can say that this is always less than d1 d2 d3. तो upon 3 root 3 तो इसका मतलब maximum value will be d1 d2 d3 upon 3 root 3. ठीक है, आई होप क्लियर होगा ये क्वेश्चन हमें कैसे करना है। अच्छा, और बाकी हम जब ऐसा क्वेश्चन आ रहा है तो वी विल कंसीडर दैट d1 d2 d3 विल बी पॉजिटिव नंबर्स, देन ओनली वन ऑफ आवर ऑप्शंस विल मैच। क्योंकि हमने जब स्क्वायर रूट किया तो फिर वो कंफ्यूजन आता है कि सर मॉड आएगा कि नहीं आएगा, तो वी विल बी कंसीडरिंग द नंबर्स एज पॉजिटिव एंड देन वी विल बी सॉल्विंग दिस क्वेश्चन। ओके, थैंक यू प्यारे बच्चों, आप सभी हमारे मोशन के जो वीडियोस हैं उनको आप देख रहे हैं और अपना प्यार हम सब के साथ बांट रहे हैं।
उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दिया गया है, ताकि आप हमारे लेक्चर्स, वीडियो लेक्चर्स आराम से देख सकें, उसके लिए आप लिंक पर जाके क्लिक करें और अपना एनरोलमेंट सुनिश्चित करें। उसके अलावा अगर आप हमारे डाउट्स सॉल्विंग उसको एनरोल करना चाहते हैं, साथ ही साथ स्टडी मटेरियल भी चाहते हैं, तो वो भी डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दिया गया है उसमें जो प्रीमियम हमारा अकाउंट है उस पर क्लिक करके आप उसको एनरोल कर सकते हैं। Now, let us solve question number 6. In this question, we have been given the sum of three numbers a, b, c, which is 5, and also you have been given that a, b, c all are positive numbers. L and M are respectively the greatest values of these two expressions. इन दोनों की respectively greatest values हैं, तो हमें greatest integer of L minus M find करना है। पॉजिटिव नंबर्स हैं, सम दे रखा है और किसी एक्सप्रेशन की ग्रेटेस्ट वैल्यू निकालनी, तो बेटा कंफर्म होना हो एम जी एम एच एम वाली इनइक्वालिटी ही किसी तरह हमें यूज करनी है। ठीक है, तो सिक्स में फर्स्ट मैं ए बी क्यूब सी पे जा रहा हूँ। तो हमें क्या होता है बेटा, तीन नंबर्स का सम दे रखा है, अच्छा बी क्यूब कर रखा है, तो हमें बी को उतने ही इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना होगा। तो लेट अस कंसीडर द नंबर्स ए बी बाई थ्री, बी बाई थ्री, बी की तीन पावर है तो टोटल तीन टर्म्स चाहिए थे, पर सर टर्म्स इक्वल होने चाहिए, तो बी के तीन पार्ट्स कर लिए और सी, तो टोटल फाइव टर्म्स। तो इनका अरिथमेटिक मीन ए प्लस बी बाई थ्री प्लस बी बाई थ्री plus b by 3 by c upon 5 is always greater than equals to their geometric mean, that is a b cube c raised to the power 27 whole raised to the power 1 by 5। क्लियर, इनका सम जो है 5 दे रखा है, कैंसिल हो जाएगा, तो 1 आ जाएगा, सो यू गेट a b cube c by 27 whole raised to the power 1 by 5 is less than equals to 1, और a b cube c is always less than equals to 27, वैसे ही बना गया। सो व्हाट इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ a b cube c, क्वेश्चन में l बोल रहा है तो l की वैल्यू हो गई बेटा 27। ठीक है, द वैल्यू ऑफ l comes out to be 27। Now, next part. Next part, we have to find the maximum value of। अब देखिए बेटा, यहाँ टर्म्स अगर आप ध्यान से देखो तो आपको दो दो का प्रोडक्ट दिख रहा है। नाउ दो दो का प्रोडक्ट जो है, अगर हम हार्मोनिक मीन की बात करते हैं, रेसिप्रोकल्स का सम आता है, तो सेकंड वाले टर्म्स में आई विल कंसीडर द टर्म्स दिस ओनली, a d by 3 b by 3 b by 3 and c, and their arithmetic mean is greater than equals to harmonic mean। arithmetic mean will be a plus b plus c by 5, सम कर दिया मैंने, greater than equals to 5 upon n upon 1 by a plus 3 by b plus 3 by b plus 3 by b become 9 by b plus 1 upon c। clear है, the sum is 1, and if you take here LCM, if you take an LCM here, so what terms you will get, 1 is greater than equals to 5 abc divided by 5 times of abc, a plus b plus c is given to be, a plus b plus c is given to be 5 na, right? So 5 just get cancelled, 5 times of abc, and numerator will become bc plus 9 ac plus ab। क्लियर, और यहाँ टर्म्स अगर हम देखें तो क्या लिखा है, abc bc 9ac, करेक्ट, दिस इज व्हाट वी हैव गेटिंग। तो वी आर गेटिंग abc अपॉन bc plus 9ac plus ab is less than equals to 1 by 5। The maximum value of this expression comes out to be 1 by 5। Now you have to find the value of L minus M का greatest integer, that is the greatest integer of 27 minus 1 by 5। So this number is less than 27, so its greatest integer will come out to be 26। Okay, so the correct answer for this question comes out to be 26। चलिए, नाउ लेट अस सॉल्व नेक्स्ट क्वेश्चन। बढ़िया क्वेश्चन है बेटा, मल्टीपल चॉइस है ये भी, ये वाला दिस वन इज अ मल्टीपल करेक्ट। ठीक है, मैंने पहले लिख दिया है, आप लोग अगर अटेम्प्ट कर रहे हो तो सारे ऑप्शंस इसके ध्यान से चेक करने हैं आपको। ठीक है, चलिए क्वेश्चन देखिए क्या है, ए बी सी आर पॉजिटिव रैशनल नंबर्स, ए बी सी जो है दे आर पॉजिटिव रैशनल नंबर्स सच दैट a is greater than b is greater than c and the quadratic equation has a root in -1 to 0। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 7 में अगर मैं लीडिंग कोफिशिएंट की बात करूं बेटा, क्योंकि a इज ग्रेटर देन b इज ग्रेटर देन c, तो a प्लस b टोटल 2 से ज्यादा होगा, नहीं होगा? a b c से ज्यादा है, a b c से ज्यादा है, तो a प्लस b कंफर्म 2c से ज्यादा होगा, इसका लीडिंग कोफिशिएंट पॉजिटिव हो गया। तो दैट मींस इसका जो ग्राफ बनेगा अपवर्ड फेसिंग पैराबोला होगा, और क्वेश्चन के हिसाब से उसका एक रूट -1 से 0 के बीच में।
तो हम इंटरमीडिएट वाली थ्योरम लगा के बोल सकते हैं f of -1 into f of 0 should be less than 0. Clear है? So what is f of -1? First we will find the value of f of -1. It will become a plus b minus 2c. -1 plus 2a minus b minus c plus c plus a minus 2b into f of 0. f of 0 is c plus a minus 2b should be less than 0. अब यहाँ पे अगर हम कैलकुलेशंस करें, सो लेट अस सी, माइनस सी से प्लस सी तो कैंसिल हो जाएगा बेटा, ठीक है। अच्छा, प्लस बी माइनस बी ये भी कैंसिल हो जाएगा, तो 2a प्लस ए 4a माइनस 2b माइनस 2c into c plus a minus 2b should be less than 0. You can take 2 common, 2a minus b minus c into c plus a minus 2b should be less than 0. अब देखो ये वाला जो है ना बेटा, ये पॉजिटिव ही होगा फैक्टर अकॉर्डिंग टू द कंडीशंस दैट हैव बीन गिवन. a इज ग्रेटर देन b. अच्छा, इस 2a को मैंने a प्लस a लिखा, तो बेटा a माइनस b पॉजिटिव होगा, दिया हुआ है, और एक a माइनस c वो भी पॉजिटिव होगा, तो ये पूरा फैक्टर तो पॉजिटिव है श्योर. So that means C plus A minus 2B confirm negative होगा, और C plus A minus 2B अगर नेगेटिव होगा तो आप यहाँ से देख सकते हो बेटा B ऑप्शन कंफर्म ट्रू होगा. A ऑप्शन पर अभी तक हम कोई कमेंट नहीं कर सकते कि B plus A से ज्यादा होगा, हमें नहीं पता है, ठीक है, पर हम ये श्योर कर सकते हैं B सॉल्व करके हमें पता चल गया. अच्छा, अब एक चीज अगर मैं और आपसे ऑब्जर्व करने को बोलूं कि f of 1 निकालो, if you put x as 1 in this equation, so A plus a 2a minus 2a gets cancelled, b plus b 2b minus 2b gets cancelled, minus 2c plus c gets cancelled. So f of 1 is 0. F of 1 is 0, that means x equals to 1 is a root of quadratic equation. अच्छा, x equals to 1 कैसा रूट है बेटा? रैशनल रूट है ना, इट्स अ रैशनल रूट. हर क्वाड्रेटिक का एक रूट रैशनल है, और एबीसी सब रैशनल नंबर्स है, मतलब कोफिशिएंट्स अगर इसके रैशनल है, एबीसी रैशनल है तो कोफिशिएंट्स रैशनल हो गए. एक रूट रैशनल है तो दूसरा रूट कंफर्म उसका रैशनल ही होगा. क्लियर? क्योंकि पॉसिबल ही नहीं है कि एक रैशनल एक रैशनल हो जाए और कोफिशिएंट्स उसके रैशनल हो जाए क्वाड्रेटिक, इट्स नॉट पॉसिबल. तो सी ऑप्शन भी करेक्ट है, बोथ रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर रैशनल. ठीक है, अब हम थर्ड वाले पार्ट पे जाते हैं. थर्ड पार्ट में क्या बोल रहा है वो? ax square plus 2bx plus c equals to 0 has both negative roots. अच्छा, इसके नेगेटिव रूट्स होंगे कैसे पता चलेगा? अगर मैं उसका सम ऑफ रूट्स कैलकुलेट करूं, तो सम ऑफ रूट्स की क्या वैल्यू आ रही है बेटा? सम ऑफ रूट्स की वैल्यू आ रही है माइनस 2b बाई ए, कंफर्म नेगेटिव, क्योंकि एबीसी पॉजिटिव नंबर्स हमें बोल रहा है, तो ए और बी पॉजिटिव है, बाहर माइनस साइन आ गया. और ऐसे ही अगर मैं प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स की बात करूं तो वो सी बाई आ रहा है जो पॉजिटिव. अब सम ऑफ द रूट्स तो पॉजिटिव आ रहा है, और प्रोडक्ट ऑफ द सम ऑफ द रूट्स नेगेटिव आ रहा है, प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स पॉजिटिव आ रहा है. तो अब हमारे पास जो है दो कंसेप्ट हो सकते हैं. या तो रूट्स दोनों नेगेटिव होंगे, पॉजिटिव तो देखो हो नहीं सकते. अगर रियल रूट्स हैं, तो दोनों नेगेटिव होंगे, तभी सम ऑफ द रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स इस साइन के साथ आएगा. पर रूट्स इमेजिनरी हुए तो, अगर रूट्स इमेजिनरी हुए तो हम कैसे बात करेंगे? देखिए, अगर रूट्स इमेजिनरी हुए, so what will happen is, if the roots are imaginary, then उसका जो रियल पार्ट है बेसिकली p प्लस आयोटा q एंड p माइनस आयोटा q, तो इसका सम ऑफ द रूट्स आएगा 2p, और प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स आएगा p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर. ये हमेशा पॉजिटिव होता है. तो 2p नेगेटिव हो सकता है अगर p नेगेटिव हो, तो हैव नेगेटिव रियल पार्ट. सो वी कैन नॉट कंफर्म से दैट हैज बोथ नेगेटिव रूट्स. अब नेगेटिव, क्योंकि अगर इमेजिनरी हुए, हम बोलते हैं इमेजिनरी रूट्स का साइन नहीं होता बेटा. यू कैन नॉट से इमेजिनरी रूट इज अ नेगेटिव नंबर. वो तभी बोल सकते हैं जब रियल हो, मतलब ये मान के चल रहा है डी ऑप्शन में कि रूट्स रियल है. तो इसके लिए हमें क्या चेक करना पड़ेगा बेटा? हमें इसके डिस्क्रिमिनेंट जो है उस पर जाना पड़ेगा. एक ये कंडीशन है हमारे पास, ये मैं लिख के रख लेता हूँ और मैं यहाँ फिर से सॉल्व करता हूँ. वी आर गेटिंग दैट c प्लस a इज लेस देन 2b या b, जो भी है, ठीक है ना. ऐसे एक हमें कंडीशन जो है वो मिलकर आ रही. अच्छा, अब हम जो है हाउ विल वी चेक ये जो चीज होगी ये ट्रू होगी कि नहीं होगी. तो अगर ए और सी क्योंकि पॉजिटिव नंबर्स है ना, तो व्हाट यू कैन से दैट सी ए और सी में अरिथमेटिक मीन ग्रेटर देन इक्वल टू ज्योमेट्रिक मीन अगर मैं यूज करूं, a plus c by 2 is always greater than equals to root ac. Clear? a plus c is always greater than equals to 2 root ac. अच्छा, now b 2b is always greater than a plus c. तो बेटा a plus c 2 root ac से बड़ा था और 2b a plus c से ज्यादा था, तो
इन दोनों से कंफर्म टू बी, टू रूट AC से तो ज्यादा होगा ही होगा, नहीं होगा क्या भाई? अगर x y से ज्यादा है, करेक्ट, और z x से ज्यादा है, तो z x y से ज्यादा हो ही जाएगा। स्क्वायर करने पे विल गेट b स्क्वायर माइनस AC इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। और अगर आप इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का डिस्क्रिमिनेंट चेक करो, इट विल बी 4 टाइम्स ऑफ b स्क्वायर माइनस AC which is coming out to be greater than equal to 0। that means रूट्स कैसे हैं? रियल। और अगर रियल रूट्स हैं तो ये जो कंडीशन मैंने लिखी ये ट्रू हो जाती है, ये वाली कंडीशन नहीं चेक करनी। और रियल रूट से तो इसका मतलब दोनों रूट इसके नेगेटिव होंगे, इसका मतलब इसका डी ऑप्शन जो होगा वो भी करेक्ट होगा। ए जो है वो हम श्योरली कहीं किसी कंडीशन से चेक नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए वो आंसर मार्क नहीं कर रहा है। ओके okay, now let us solve question number 8. In this we have been given four numbers which are in GP A1 A2 A3 A4. The harmonic mean of A1 and A2 is 12 and that of A2 and A3 is 36। मतलब A2 A3 का हार्मोनिक मीन 36 है। तो which of the following options जो है वो करेक्ट होंगे? तो सबसे पहले हार्मोनिक मीन ऑफ A1 A2, let's say A1 is A, GP में ना टर्म्स, A2 को you can write as AR, A3 को you can write AR square and A4 को you can write as AR cube। ठीक है, this is question number 8। So what you have to find? And harmonic mean of A1 A2, that is 2A AR upon A plus AR is given to be 12। Equation number you can simplify it further. You can simplify it. 1A gets cancelled, so 2AR upon 1 plus R becomes 12। Equation 1। Then A2 and A3 का harmonic mean, that is 2AR into AR square upon AR plus AR square। You can cancel AR, so you'll get 2AR square upon AR common लिया था तो 1 plus R is 36। Second equation। Now you can divide equation number 2 with equation number 1। So 1 plus R and 2A gets cancelled, 1 R gets cancelled, you directly get R as 3। Simple calculations। R को 3, if you put R as 3, let's say in this equation, so 3 to the 6, 2, so you'll get A upon 4 is equals to 2, or the value of A comes out to be 8। So we can now write the values of terms. A1 as 8, A2 is A into R, 8 is 24, A3 24 into 2 72, and A4 72 into 3 216। Clear? Now you just have to check the options like 3A1 minus A2, 8 is 24 minus A2 0, it's wrong। 9A1 9A1 9 8 is 72 minus A3 72 0, correct। So ऐसे अगर आप चेक करेंगे you'll get B and C as correct options। Sum of digits in A4 is 6, A4 में sum of the digits 9 आ रहा है, तो D option B correct है। So B and C for this question are the correct answers। Clear? चलिए next question करते हैं। इसमें you have been given the value of x, it is a form of a series which is root over 1 plus 1 by 1 square plus 1 by 2 square plus under root 1 plus 1 by 2 square plus 1 by 3 square plus 1 upon under root 1 by 3 square plus 1 by 4 square and so on up till this। So you have to find the value of this। This is an integer type question। अच्छा, इसको solve करने के लिए now see, इसको अगर हम solve करना चाहते हैं, so what you have to do is we have to first write the general term of this। So the general term of this question of this series is under root of, this is first term 1 1 सब में चल रहा है, second term 1 upon 1 square 1 by 2 square first term, second term में 2 और फिर 3, third term में 1 upon 3 square and 1 upon 4 square। तो nth term में 1 plus 1 upon n square plus 1 upon n plus 1 का whole square। Now our aim is to make it a perfect square। सीरीज का सम निकालना है तो हमें एज अ डिफरेंस ऑफ टू टर्म्स में ब्रेक करना है। So let us try by making it, converting it into a perfect square। डिफरेंस में कन्वर्ट करना है, let us write it as this in this form। When you take LCM, yeah, or you can say that a minus b equals to a square plus b square minus 2ab, so plus 2a into b। Now if you take LCM in this, if you take LCM in this, 1 plus n plus 1 से n कट जाएगा, this will be 1 upon n into n plus 1 का whole square plus 2 upon n into n plus 1। and if you look at it carefully, this is nothing but a whole square of 1 plus 1 upon n into n plus 1। So we get our nth term as 1 plus 1 upon n into n plus 1, which can be further split it as 1 upon 1 by n
-1/n+1। आई होप इतना करने में दिक्कत नहीं आएगी आपको। इन दोनों का डिफरेंस ऊपर बना दो, कांस्टेंट 1 ही है, and separate it. This becomes Tn. So what will be the sum of n terms? It will be sigma Tn, where n varies from 1 to 2012. The last term here it is 2012. First term में 1 था, second term में 2 था, last term में 2012. So when you apply the sigma, this will be sigma 1. It will come out 2012 times plus इनमें 1 रखेंगे, 1 minus 1 by 2, 2 रखेंगे तो 1 by 2 minus 1 by 3. Each term gets cancelled. Only the first term, that is 1, and the last term, that is 1/2013 remains. आप सीरीज लिख कर देखिए. So the value of x comes out to be 2012 plus 2012 upon 2013. और अगर हमें x की वैल्यू पता चल गई, उसके बाद कुछ नहीं करना है. You just have to substitute the value of x here and check for yourself what will be your correct answer. जैसे 2012 से 2012 तो कट जाएगा, तो 2013 into 2012 upon 1342 upon 503. When you solve it, you get your answer as 6. Clear? So the correct answer for this question comes out to be 6. Okay? चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं. क्वेश्चन नंबर 10 में हमें टोटल 5 टर्म्स दे रखी हैं, A1, A2, A3, A4, A5 जो HP में है. तो हमें A1, A2 plus A2, A3 plus A3, A4 plus A4, A5 इसकी वैल्यू किसके बराबर है, जो 4 ऑप्शन है इनमें से हमें चेक करना है. तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का बेटा एक वे ये हो सकता है कि हम 5 टर्म्स एज्यूम कर लें जो HP में हो, जैसे 1, 1/2, 1/3, 1/4, 1/5. उसके बाद हम इस एक्सप्रेशन की वैल्यू निकालें और ऑप्शन से चेक करें कि वो किसके बराबर आ रहा है. दैट कैन बी वन ऑफ द वेज ऑफ सॉल्विंग दिस क्वेश्चन. बाकी अगर हम नॉर्मल तरीके से मान लीजिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करना चाहते हैं, सो A1, A2, A3, A4, A5 अगर HP में है तो जो A2 होगा, A2 की वैल्यू 2A1 A3 अपॉन A1 प्लस A3 के बराबर होगी बिल्कुल. 2A1 A3 A2 A1 A3 का हार्मोनिक मीन है, तो उसमें नहीं लिख लिया. तो इससे मुझे कंडीशन मिल रही है A1 A2 प्लस A2 A3 is equals to 2 times of A1 A3. This is equation number 1. अच्छा, सिमिलरली आई नाउ रिक्वायर A3, A4 एंड A4, A5. ठीक है, तो उसके लिए मैं बेटा ये 3 टर्म्स कंसीडर करता हूं. तो A4 जो होगा इट विल बी द हार्मोनिक मीन ऑफ A3 एंड A5. तो 2A3 A5 अपॉन A3 प्लस A5. तो A3 A4 प्लस A4 A5 इसकी वैल्यू हो गई 2 टाइम्स ऑफ A3 A5. इक्वेशन नंबर 2. ठीक है, तो अगर मैं इन दोनों इक्वेशंस को ऐड कर दूं, तो इन दोनों इक्वेशंस को ऐड करके आई विल गेट A1 A2 प्लस A2 A3 प्लस A3 A4 प्लस A4 A5 and its value will be 2 times of A1 A3 plus 2 times A1 A3 plus 2 times of A3 A5. अच्छा, अभी तक कोई ऑप्शन ऐसे फिलहाल मैच नहीं किया है. सो वी हैव टू सी दैट A1 A3 plus A3 A5 की वैल्यू किसके बराबर है. नाउ यू कैन सी दैट A1 A3 ना and A3 A5. So what we can do is we can also say that. प्यारे बच्चों, हमें रोज ढेरों और ढेरों कमेंट्स मिल रहे हैं और उसमें हमें स्टूडेंट्स की रिक्वेस्ट भी आ रही है कि सर हमें इस पर्टिकुलर टॉपिक का वीडियो चाहिए या इस पर्टिकुलर टॉपिक के हमें कुछ क्वेश्चंस चाहिए. तो मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप मोशन के जो है यूट्यूब चैनल पे जाइए, उसको सब्सक्राइब करिए, उसके बेल आइकन को दबाइए ताकि आपको सारे नोटिफिकेशंस टाइम टू टाइम मिलते रहें. क्योंकि हमें ज़्यादातर जिन चीज़ों की रिक्वेस्ट मिल रही है, जिस वीडियो की रिक्वेस्ट मिल रही है, आप यूट्यूब चैनल पे जाके चेक करेंगे तो आप देखेंगे कि हमने ऑलमोस्ट सारे ही जो वीडियोस हैं वो अपलोड कर रखे हैं. तो आप उसको आराम से एनरोल करके वीडियोस देख सकते हैं ताकि आप उसका ज़्यादा से ज़्यादा जो है फ़ायदा उठा सकें. A3 जो होगा, बस अब ये बचा, दिस इज द हार्मोनिक मीन ऑफ A2 एंड A4. सो A3 कैन बी रिटन एज 2A2 A4 अपॉन 2A2 A4 upon A1 A3 2 times of A1 A3 upon A2 plus A4. Here, so here from here you will get A2 A3, but I require A1 A3 and also I require A3 and A5. One thing you can do is see, इससे बजाय भाई A2 A4 का टर्म नहीं चाहिए, हम ये कह सकते हैं कि A3
जो है A1 और A5 का भी हार्मोनिक मीन होगा भाई। क्यों भाई? मिडिल टर्म है ना, A1 A5 का मिडिल टर्म। सो A3 कैन बी रिटन एज 2 टाइम्स ऑफ A1 A5, 2 टाइम्स ऑफ A1 A5 अपॉन A1 प्लस A5। लिख सकते हैं ऐसे 2A1 A5 upon A1 plus A5. So from here you will get A1 A3 plus A3 A5. A1 A3 plus A3 A5 is equals to 2 times of A1 A5. Clear? So 2 times of A1 A3 plus A3 A5 की वैल्यू अगर मैं यहाँ सब्स्टिट्यूट करूँ, so this will become 4 times of A1 A5. 4 times of A1 A5 is written in option number C. क्लियर? देखिए क्या हुआ, यहाँ तक तो हमने ऑलरेडी जो है हार्मोनिक से कर लिया। अब A3 जो था, वी रिक्वायर दैट हमारा आंसर यहाँ सब जगह A1 A5 की टर्म्स में था। ठीक है, वैसे तो वो गलत नहीं था, A3 जो है A2 और A4 का हार्मोनिक मीन है, पर हमें आंसर A2 A4 की टर्म्स में नहीं चाहिए था। सो मैंने A3, क्योंकि इस पूरी 5 टर्म्स का मिडिल टर्म है, तो फर्स्ट और लास्ट का भी हार्मोनिक मीन होगा, तो उससे मैंने A3 को 2A1 A5 अपॉन A1 प्लस A5 लिखा, जिससे मुझे A1 A3 प्लस A3 A5 की वैल्यू 2A1 A5 मिली। जैसी मैंने यहाँ रखा, so I get option 4 times of A1 A5 which is written in option number C। ठीक है भाई, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं बेटा। ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिस इज पैराग्राफ टाइप। ठीक है, पैराग्राफ टाइप ऑफ क्वेश्चन। अब इस क्वेश्चन में हमें कुछ डेटा दिया हुआ है, ग्राफ वगैरह बना के दिया है, एंड बेस्ड ऑन दैट वी हैव टू simplify the two questions which have been given. So let us read the question first. Fx is a graph x square plus quadratic ax x square plus ax 2ax plus b. Gx is another quadratic cx square plus 2dx plus 1. Fx का ग्राफ और gx का ग्राफ हमें जो है बना के दे रखा है, और ये भी दे रखा है कि मॉड ऑफ a डैश, मॉड ऑफ ए डैश, ए डैश के बीच का डिस्टेंस और बी बी डैश के बीच का डिस्टेंस, ये जो है ये वाला डिस्टेंस और ये वाला डिस्टेंस, ये दोनों क्या है? इक्वल है। दिस डिस्टेंस का मॉड है ना, मॉड डिस्टेंस में बोल रहा हूँ, इसलिए मॉड इसलिए लगाया ताकि भाई बी बी डैश जो है वो नेगेटिव ना हो जाए, वो सब, तो मॉड जो है वो पॉजिटिव है, और ओ ए डैश और ओ बी इक्वल है। सो बेसिकली दोनों का जो वर्टेक्स है, वर्टेक्स के एक्स कोऑर्डिनेट का मैग्नीट्यूड दोनों का इक्वल है, ओ ए डैश एंड ओ बी डैश, और दोनों के y कोऑर्डिनेट जो है वर्टेक्स के, उसका मैग्नीट्यूड भी इक्वल है। सो हमें विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू ये चेक करना है। ठीक है, चलिए तो सबसे पहले अगर मैं fx फंक्शन की बात करूं, तो fx फंक्शन का जो वर्टेक्स है फॉर fx, वर्टेक्स क्या होगा? लेट अस लुक एट दिस वर्टेक्स। x coordinate of the vertex will be minus b by 2a, so minus b by 2a, that is minus a, comma, and y coordinate is minus d by 4a, so minus d becomes b square, that is 4a square b square minus 4ac upon 4a। ठीक है, तो इसका वर्टेक्स जो हो गया, उसके कोऑर्डिनेट्स हमें मिल गए। किसके कोऑर्डिनेट्स है बेटा? ये ए पॉइंट जो है, ए पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स आ रहे हैं माइनस ए कॉमा माइनस ऑफ ए स्क्वायर माइनस बी, ये ए पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स आ गए। नाउ सिमिलरली फॉर जीएक्स, है ना, पहले अपन ये काम कर ले रहे हैं, तो ऐसे ही हम जीएक्स के जो बी डैश पॉइंट है उसके मैं कोऑर्डिनेट्स निकाल लेता हूँ। तो एक्स कोऑर्डिनेट जो होगा वर्टेक्स का माइनस बी बाई 2 है, सो माइनस बी बाई 2 है माइनस डी बाई सी, comma minus of discriminant b square, that is 4d square minus 4c upon 4c। Clear? So the coordinate of b dash comes out to be minus d by c, comma 4 cancel हो जाएगा, you can write c minus d square upon c। चलिए अब जो कंडीशंस गिवन है, we'll apply that। a डैश का मॉड और b डैश का मॉड बराबर होना चाहिए। अब देखो बेटा, हम डायग्राम के हिसाब से बोल सकते हैं कि जो a का x कोऑर्डिनेट है वो नेगेटिव है, a का x कोऑर्डिनेट नेगेटिव है, मतलब माइनस a कंफर्म नेगेटिव है, तो a का साइन कैसा हो गया? इसका मतलब पॉजिटिव। श्योर हो गए? समझ में आई बात भाई? जो a का x कोऑर्डिनेट है, इट इज ऑन द लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द y एक्सिस, दैट मींस इट्स x कोऑर्डिनेट शुड बी नेगेटिव, दैट इज a इज पॉजिटिव। ठीक है, so mod of a dash, mod of a dash, now a dash कितना आ रहा है बेटा? ये लेंथ कितनी आ रही है? पहले तो एक चीज है ना, ओ ए डैश, मैं पहले ये इक्वल कर देता हूँ, ओ ए डैश इक्वल टू ओबी, ओ ए डैश इक्वल टू ओबी, एंड ओबी इज व्हाट? ओबी मतलब ओरिजिन से इसका कोऑर्डिनेट माइनस डी बाई सी। सो फ्रॉम द कंडीशन ओ ए डैश का मॉड इक्वल्स टू ओ बी का मॉड, ओ ए डैश का मॉड मतलब ए शुड बी इज इक्वल्स टू
OB come out, that is minus D by C. Now minus D by C has to be positive. मैं लिख लेता हूँ minus D by C should be greater than 0 because the x coordinate of D dash, the x coordinate should be positive. ठीक है. अच्छा, अब ये this is an upward facing parabola. So if it is an upward facing parabola तो C की वैल्यू भी कैसी होनी चाहिए भाई? पॉजिटिव. यहाँ लिखता रहता हूँ. C की वैल्यू भी पॉजिटिव होगी. If C is positive, if C is positive, that means minus D should be greater than 0 or D should be less than 0. जो जो डेटा हम निकालते जा रहे हैं वो मैं देखता जा रहा हूँ. ठीक है. तो एक कंडीशन तो बेटा यहाँ से आ गई, दैट इज AC इक्वल टू माइनस डी. यहाँ लिखा है AC इक्वल टू प्लस डी, तो ये आंसर तो करेक्ट नहीं हो सकता. अब मैं सेकंड कंडीशन जो है वो सिंप्लीफाई कर लेता हूँ. सेकंड कंडीशन में है ए डैश का मॉड. नाउ ए डैश तो y कोऑर्डिनेट. अब दिस हैज टू बी पॉजिटिव क्योंकि वो मुझे ऊपर ही दिख रहा है. इट इज b माइनस a स्क्वायर. इसका मॉड यही होगा, इज इक्वल टू b डैश. नाउ व्हाट इज b डैश? नाउ दिस क्वांटिटी इज नेगेटिव. दिख रहा है बेटा, y कोऑर्डिनेट जो होगा इसका नेगेटिव होगा तो इसका मॉड जो होगा प्लस करेंगे, इट विल बिकम d स्क्वायर माइनस c अपॉन c. सो आई एम गेटिंग bc माइनस c a स्क्वायर इज इक्वल टू d स्क्वायर माइनस c. लेट अस चेक अगर ये किसी ऑप्शन में मैच कर रहा है तो c को अगर मैं लेफ्ट हैंड साइड में लिया हूं तो bc प्लस c इज इक्वल टू d स्क्वायर प्लस c a स्क्वायर. c a square plus d square. It is written in option number B. So option B for this becomes the correct option. ठीक है. फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व हो गया. हमने क्या किया बेटा? डिस्टेंसेस इक्वेट करनी. डिस्टेंसेस को इक्वेट करने के लिए आपको मॉड जैसे लगा रखा है, तो ध्यान रखना है कि कौन सा कोऑर्डिनेट नेगेटिव है, तो उसके अकॉर्डिंग मॉड प्लस माइनस जैसे खुलेगा वो अपन को चेक करते हुए सॉल्व करना है. अच्छा, सेकंड बोल रहा है सम ऑफ रूट्स ऑफ fx इक्वल टू 0 एंड gx इक्वल टू 0. fx इक्वल टू 0 और gx इक्वल टू 0 के सम ऑफ द रूट्स. तो बेटा जो fx है, fx का सम ऑफ द रूट्स का क्या फॉर्मूला होता है? माइनस b बाई 2a होता है. माइनस b बाई 2a. तो लेट से fx के रूट्स अल्फा बीटा थे, तो अल्फा प्लस बीटा कम्स आउट टू बी माइनस b बाई 2a. तो माइनस sum of the root minus b by, sorry, not 2a, minus b by comes out to be minus 2a. और गामा डेल्टा gx के रूट्स हैं लेट से. ठीक है ना, gx रूट गामा डेल्टा, तो इसका सम ऑफ द रूट माइनस 2d अपॉन c आ रहा है. अब हमें ये जो बोल रहा है सम ऑफ द रूट्स के लिए ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस इक्वल बोल रहा है, बट इसके जो रूट्स माइनस b बाय वो उसका ये नेगेटिव में आ रहे हैं और ये जो है वो पॉजिटिव है. अब अपन जब रूट्स का सम लिखेंगे तो मॉड के साथ नहीं लिखेंगे बेटा, सीधा लिखेंगे. मतलब अगर आपने इन दोनों को ऐड कर दिया तो व्हाट यू आर गेटिंग, माइनस 2 कॉमन आएगा, a प्लस d बाई c. क्लियर. एंड यू नो दैट यहाँ से कंडीशन दैट a इज इक्वल टू माइनस d बाई c, इसकी वैल्यू कितनी आ गई बेटा? 0 आ गई. So the sum of the roots of fx equals to 0 and gx equals to 0 is 0. So the correct answer for this becomes A option. Okay. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12. और ये बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है बेटा. ये क्वाड्रेटिक और सीक्वेंस का मिक्स क्वेश्चन आप मान सकते हैं और ये एडवांस 2019 में आया था. जेई 2019 में ये क्वेश्चन पूछा गया था. तो हमें ऐसे क्वेश्चंस की भी जो है बिल्कुल प्रैक्टिस होनी चाहिए, है ना. हमें ये भी भाई हम पास्ट ईयर के क्वेश्चंस जो है वो बिल्कुल आपको सॉल्व करने चाहिए, जिससे आइडिया लगता है कि एक्चुअल में किस पैटर्न पे किस टाइप के क्वेश्चंस जो है वो पूछे जाते हैं. तो इट्स अ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन और हम क्वेश्चन पढ़ते हैं और फिर इसे सॉल्व करके कि कैसे हम इसे जो है प्रोसीड करेंगे. तो क्वाड्रेटिक है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 1 इक्वल टू 0, जिसके रूट्स अल्फा बीटा है और बोला है अल्फा बीटा से जाता है. For all positive integers n, they have defined an as alpha raised to the power n minus beta raised to the power n upon alpha minus beta, where n is greater than equals to 1. अच्छा, b1 की वैल्यू हमें जो है 1 गिवन है और bn गिवन है an minus 1 plus an plus 1, जहां n greater than equals to 2 है. तो आपको आइडेंटिफाई करना है करेक्ट स्टेटमेंट्स को. ठीक है, यू हैव टू आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट्स. सबसे पहले आपको सिग्मा a1 plus a2 plus a3 up till an बताना है कि क्या वो इसके बराबर है या नहीं है. ठीक है. लेट्स सी. देखिए, एक तो चीज अल्फा और बीटा इसके रूट्स हैं तो इसे सेटिस्फाई करेंगे ही करेंगे. मतलब अल्फा स्क्वायर माइनस अल्फा माइनस 1 0 होगा, बीटा स्क्वायर माइनस बीटा माइनस 1 0 होगा. ये हम कहीं भी जरूरत पड़ेगी सम ऑफ द रूट्स में या एक्सप्रेशन को रिड्यूस करने में वो हम देख लेंगे. अच्छा, अगर मैं आपसे बोलूं कि आप a ऑफ लेट्स से r प्लस 2 माइनस ए आर जो है कैलकुलेट करो. ए आर प्लस 2 माइनस ए आर. देखिए, मैं इन दोनों में 2 का डिफरेंस जो है क्रिएट करना चाह रहा हूँ पावर में, जिससे मैं अल्फा स्क्वायर माइनस 1 जैसा कोई टर्म क्रिएट करूं. तो व्हाट इज ए आर प्लस 2? ए आर प्लस 2 यूजिंग
this equation, it will become alpha raised to the power r plus 2 minus beta raised to the power r plus 2 upon alpha minus beta minus alpha raised to the power r minus beta raised to the power r upon alpha minus beta. Now, if we simplify this, LCM alpha minus beta, from this and this, if I take alpha raised to the power r common, I will get alpha square minus 1. And if I take minus beta raised to the power r common, I will get beta square minus 1. Now, I'll make use of these equations. Alpha square minus 1 is alpha and beta square minus 1 is beta. So if I write it as alpha, this will become alpha raised to the power r plus 1 minus beta raised to the power r plus 1 upon alpha minus beta. So if you observe it clearly that a n was alpha raised to power n minus beta raised to power n, और यहाँ पर आ रहा है बेटा r plus 1. So a r plus 2 minus a r can be written as a of r plus 1. I hope you are understanding this thing. So from here, AR comes out to be AR plus 1 plus AR plus 2. Clear? This is valid for n greater than equals to 1 or r greater than equals to 1. Now, if you start substituting the values of r equals to 1, so what you will get? A1 will come out to be A2 plus A3. Clear? A1 will come out to be A2 plus A3. Now, if you put the value of now, if you will put the value of R as 2, you will get A2 is equals to A3 plus A4 and so on up till AN plus 1 plus AN plus 2. If you add all the terms, if you add all these terms, right? So you will get minus AR plus 1 will become AR. Now you put the values of R as 1. So A1 will be A3 minus A2. R को 2 रखेंगे तो A2 will be A4 minus A3. A4 minus A3 and so on up till AN. R को N रखेंगे तो AN plus 2 minus AN plus 1. Now you can easily see that when you add all these terms will get cancelled and sigma AR, where R varies from 1 to N, उसका सम होगा AN plus 2 minus A2 के बराबर. Now what is A2? That I will calculate by putting the value of N equals to 2 here. So I'll calculate here. A2 is alpha square minus beta square upon alpha minus beta, which will become alpha plus beta. And sum of the roots of this quadratic equation is 1. The value of A2 comes out to be 1. So that means this becomes AN plus 2 minus 1. So if you check that A option, it is given that sum of the terms is AN plus 2 minus A1. This is what we are getting. तो A option जो है वो तो correct हो ही गया. अच्छा, next अब देखते हैं बेटा. Next में B option में sigma n equals to 1 to infinity AN upon 10 की power n जो है वो हमें check करना है. So I will be solving B option here. If you put the value of n as 1, A1 by 10 plus alpha minus beta upon alpha minus beta. देखिए अल्फा माइनस बीटा तो सबके साथ कॉमन आएगा, तो मैं उसको 1 अपॉन अल्फा माइनस बीटा लिख लेता हूँ अपॉन 10. नेक्स्ट टर्म अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर अपॉन 10 स्क्वायर and so on till infinite terms. So 1 upon alpha minus beta, I can convert it as a sum of two series. One is alpha by 10, alpha square by 10 and so on till infinite terms minus beta by 10 plus beta square by 10 square and so on. So this becomes infinite GP. Infinite GP का sum 1 upon alpha minus beta, alpha by 10 upon 1 minus alpha by 10, a upon 1 minus r, a upon 1 minus r. ठीक है. So when you take LCM 1 upon alpha minus beta, 10 cancel हो जाएगा. Alpha upon 10 minus alpha minus beta upon 10 minus beta. क्लियर है? आई होप आपको क्लियर हो गया कि हमें वैल्यू जो है वो किसकी सॉल्व करनी है. अच्छा, और अपॉन 10, दैट्स राइट. So now when you take again, if you take LCM 1 upon alpha minus beta, so it will be 10 alpha minus alpha beta, that gets cancelled. So 10 times alpha minus beta upon 10 minus alpha into 10 minus beta. ठीक है, तो ये alpha minus beta भी cancel हो जाएगा. Now you just multiply this
तो ये सम ऑफ प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा बेटा 100 माइनस 10 टाइम्स अल्फा प्लस बीटा प्लस अल्फा बीटा. सो व्हेन यू सॉल्व यू गेट द आंसर इज 10/89. कैलकुलेशंस आई होप आप कर लेंगे, आप करके देखिए. सो दिस ऑप्शन विल आल्सो बी द करेक्ट आंसर. अब हमें बी ऑप्शन पे जाना है जिसमें हमें सिग्मा बी एन बाय 10 निकालना है. पर बेटा सिग्मा बी एन बाय 10 निकालने से पहले बी एन कैलकुलेट करना जरूरी है. ठीक है. सो लेट अस नाउ स्टार्ट सॉल्विंग द वैल्यू ऑफ बी एन. तो ये हमारे ए और बी पार्ट हो गए. दिस आई एम रिमूविंग फ्रॉम हियर. ठीक है. जेई में आप देखिए बेटा ऐसे ही लेंथी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो होते हैं वो ऐसे ही लेंथी आते हैं जिसमें हमें हर ऑप्शन जो है वो मतलब कई बार ऐसे लेंथी क्वेश्चंस आते हैं जिसमें हमें हर ऑप्शन में कैलकुलेशंस करनी पड़ती है. तो ठीक है बेटा बी एन जो है it is given an minus 1 plus an plus 1. So what is an minus 1? This becomes alpha raised to the power n minus 1 minus beta raised to power n minus 1 plus alpha raised to the power n plus 1 minus beta raised to power n plus 1 upon alpha minus beta. Now what happens? देखिए अब हम इसे सिंप्लीफाई जो है कैसे करें. देखिए अगर आप इसमें से अल्फा की पावर n minus 1 कॉमन भी लेते हैं तो यू विल गेट 1 plus alpha square. Now 1 plus alpha square तो इस क्वाड्रेटिक से कहीं से नहीं बनेगा जो हम रिड्यूस करें. So next thing that I can see is the product of the roots is minus 1. Clear? Alpha into beta is minus 1. So the value of beta becomes minus 1 by alpha. So बेटा अगर मैं अल्फा की पावर n माइनस वन को कंसिडर करूं, मैं अगर आपको बोलूं कि इसको अल्फा की पावर n अपॉन अल्फा लिखो, लिख सकते हैं बेटा. अल्फा की पावर n माइनस वन को अल्फा की पावर n अपॉन अल्फा लिख सकते हैं. So 1 by alpha can be written as minus beta. So this becomes minus alpha की पावर n beta. क्लियर. सिमिलरली बीटा की पावर n माइनस वन को मैं बीटा रेस पावर n अपॉन बीटा लिखूंगा. क्लियर. और 1 अपॉन बीटा की वैल्यू माइनस अल्फा, तो दिस होगा माइनस बीटा की पावर n अल्फा. इन दोनों वैल्यूज को यहाँ सब्स्टिट्यूट अगर मैं करूं सो द वैल्यू ऑफ bn बिकम्स अल्फा रेस पावर n माइनस अल्फा रेस पावर n बीटा माइनस बीटा, तो प्लस इट बिकम्स बीटा की पावर n अल्फा प्लस अल्फा रेस पावर n प्लस 1 minus beta raised to the power n plus 1 upon alpha minus beta. Now, taking these two terms together, if you take alpha raised to the power n common, so you will be, the term remaining will be alpha minus beta, and in दोनों में से if you take beta raised to power n common, so you will be remaining with alpha minus beta upon alpha minus beta. So we can easily see that bn, you can cancel alpha minus beta because difference of the root is not 0, comes out to be alpha raised to power n plus बीटा रेज टू द पावर n फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1. तो सबसे पहले तो ये डी ऑप्शन देखो बेटा. ये डी ऑप्शन जो है सिंप्लीफाई होकर जो है सही वही बन गया जो यहाँ लिखा हुआ था. अब हमें सिग्मा bn अपॉन 10 की पावर n करना है. तो सी ऑप्शन के लिए दैट मींस वी नीड b1 अपॉन 10 प्लस b2 अपॉन 10 स्क्वायर एंड सो ऑन. यूजिंग दिस इक्वेशन आई कैन राइट इट एज अल्फा प्लस बीटा अपॉन 10 प्लस अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर अपॉन 10 स्क्वायर एंड सो ऑन. अगेन मैं इसको दो सीरीज में ब्रेक कर लेता हूँ. अल्फा रेज पार्ट अल्फा बाय 10 अल्फा स्क्वायर बाय 10 स्क्वायर एंड सो ऑन एंड बीटा बाय 10 प्लस बीटा स्क्वायर बाय 10 स्क्वायर एंड सो ऑन. सो इनफाइनाइट जीपी अल्फा बाय 10 अपॉन 1 माइनस अल्फा बाय 10 प्लस बीटा बाय 10 अपॉन 1 माइनस बीटा बाय 10. वही बेटा एलसीएम अगर आप लेंगे तो दिस विल बी अल्फा अपॉन 10 माइनस अल्फा plus beta upon 10 minus beta. So now just you have to do the calculations. Everything will be converted in sum and product of the roots form. So solve करने पे बेटा ये जो वैल्यू आती है 12 by 89 आती है. कितनी आती है? 12 by 89. जबकि सी ऑप्शन में लिखा है 8 by 89. So that means C option is not the correct answer. So इस क्वेश्चन के जो करेक्ट ऑप्शंस हो गए वो हो गए A, B and D. ठीक है. तो लेंथी है, कैलकुलेटिव भी है, बढ़िया कंसेप्ट भी है, रिडक्शन भी यूज हुआ क्वाड्रेटिक की हेल्प से. एग्जैक्टली रूट्स नहीं निकाले और रिडक्शन यूज हुआ. बाकी सीरीज वगैरह जैसे क्रिएट हो रही है, इनफाइनाइट जीपी क्रिएट हो रही है, उसका सम यूज हो. ओके चलिए बेटा अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. क्वेश्चन नंबर 13, 14, 15 मैंने लिख दिया आपके सामने और ये सब जो है इंटीजर टाइप क्वेश्चंस हैं. इनके आंसर्स जो है वो इंटीजर्स आ रहे हैं. सिंगल डिजिट, डबल डिजिट, किसी भी टाइप का आंसर इनका हो सकता है. So question number 13, if the sum of n AMs inserted between 7 and 37, अगर 7 और 37 के बीच में n arithmetic mean insert करते हैं तो उनका sum है 198, then the sum of square of these n arithmetic mean inserted between them. मतलब अगर a1, a2, a3 till an तक n means insert करे हैं तो हमें a1 square plus a2 square, a3 square till an square तक का sum जो है वो कैलकुलेट करना है. तो इसके लिए देखिए सबसे पहले जरूरी है कितने arithmetic means जो है वो insert करें. तो
देखिए हम जानते हैं सम ऑफ अरिथमेटिक मीन्स का फॉर्मूला। अब ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, n इंटू कैपिटल ए, दैट इज n इंटू a प्लस b बाई 2। ये आपको क्वेश्चन में 198 दिया है, तो n इंटू a प्लस b बाई 2 is 198. So the value of n comes out to be 198 divided by 22, which is 9. तो इसका मतलब हमने इन दोनों नंबर्स के बीच में जो गिवन डेटा है उसके हिसाब से 9 अरिथमेटिक मीन इंसर्ट करें। अच्छा, अरिथमेटिक मीन्स का कॉमन डिफरेंस का भी फॉर्मूला होता है बेटा, b माइनस ए अपॉन n प्लस 1। अब मुझे n पता चल गया तो 37 माइनस 7 is 30 डिवाइडेड बाय 10, तो कॉमन डिफरेंस इज 3। सो व्हाट आर द मीन्स? a1 becomes 3, no sorry 3 तो डिफरेंस है, a1 becomes 10, a2 becomes 13 and so on up till the ninth mean, arithmetic mean will become 34. So आपको इन सबके स्क्वायर का सम निकालना है, 10 स्क्वायर प्लस 13 स्क्वायर प्लस 16 स्क्वायर अप टू 34 स्क्वायर। तो बेटा ये 10 13 अगर हम देखें तो एक AP लिखी हुई है, इसका फर्स्ट टर्म 10 है प्लस n माइनस 1 और कॉमन डिफरेंस 3 है, विच कम्स आउट टू बी 3n माइनस प्लस 7। सो हम अगर इसका स्क्वायर करें, ठीक है ना, tn स्क्वायर करते हैं तो इट विल बी 9n स्क्वायर प्लस 7 3 21 42n प्लस 49। सो व्हाट विल बी द सम ऑफ दैट सीरीज? दैट इज सिग्मा, ये tn डैश मान लेते हैं बेटा, एक नई सीरीज बनी जो इस अरिथमेटिक मीन की जो टर्म्स थी उसका स्क्वायर करने पर ऐसी सीरीज आई, तो उसका सम निकालना है अपन, तो सिग्मा अपन इस पे लगा देते हैं tn डैश पर, ठीक है। सो नाउ आई होप यू नो हाउ टू कैलकुलेट द सम। तो सिग्मा जो तीनों टर्म्स वाला लग जाएगा, तो 9 टाइम्स ऑफ n स्क्वायर दैट इज n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 अपॉन 6 प्लस 42 times n into n plus 1 by 2 and plus 49n, and you have to put n as 9 here. So आप n को 9 रखकर when you will do the calculations, so the answer will come out to be 4896. Sum of these terms will be 4896. ठीक है, so this is the correct option. तरीका समझ में आ गया। पहले हमने सम ऑफ अरिथमेटिक मीन से नंबर ऑफ मीन्स निकाले, फिर आफ्टर नंबर ऑफ मीन्स हमने कॉमन डिफरेंस निकाला, कॉमन डिफरेंस से मीन्स आ गए, मीन्स का जनरल टर्म लिखा जिसको, क्योंकि हमें स्क्वायर का सम निकालना है तो जनरल टर्म का स्क्वायर करके तो उसकी स्क्वायर वाली सीरीज की जनरल टर्म पता चल गई। फिर सम, अगर किसी भी सीरीज का जनरल टर्म पता है तो सम कैसे निकलता है? सिग्मा से। तो सिग्मा हमने कर दिया, सिग्मा n स्क्वायर सिग्मा n 49 पे, और n की वैल्यू कितने टर्म्स से? 9 टर्म्स से। 9 रख दी, कैलकुलेशन करनी है वो आप कर लेंगे, सो आंसर कम आउट टू बी 4896। ओके, अच्छा चलिए अब क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर 14 बढ़िया क्वेश्चन है भाई, इसका कंसेप्ट जो है वो आपने बहुत अच्छे से समझना है। क्वेश्चन में ये कह रहा है कि जो सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ ए है वो फाइंड करना है फॉर विच fx is positive for exactly 3 distinct negative integral values of x. fx पॉजिटिव होना चाहिए फॉर एग्जैक्टली 3 distinct negative integral value of x. बेटा ऐसे क्वेश्चंस में जब ये फिक्स कर देते हैं कि fx या तो पॉजिटिव है या नेगेटिव है फॉर एग्जैक्टली 3 इंटीग्रल वैल्यूज ऑफ x या 4 इंटीग्रल वैल्यू ऑफ x, तो बेटा आपको कोशिश रहनी चाहिए इसको फैक्टराइज करने, fx को फैक्टराइज करने की कोशिश रहनी चाहिए। इसमें मेरा एक्सपीरियंस ये कहता है कि कंफर्म एक रूट इसका कंफर्म कोई ना कोई कांस्टेंट वैल्यू आई, ठीक है। तो वो अपन चेक कर लेते हैं, इसके रूट्स निकाल के, चाहे तो सीधा आ रही है फैक्टराइजेशन आपको ऐसी दिख रहा है तो आप ऐसे भी कोशिश कर सकते हैं फैक्टर करने की। तो जैसे मैं ऐसे करने की बताता हूँ आपको, मान लीजिए ax स्क्वायर माइनस 3x माइनस 2ax प्लस 6 इक्वल टू 0। इन दोनों में से x कॉमन लिया तो ax माइनस 3, इसमें से मैंने माइनस 2 कॉमन लिया तो ax माइनस 3 इक्वल टू 0। देखो बेटा x माइनस 2 इंटू ax माइनस 3 इज इक्वल टू 0, तो क्वाड्रेटिक तो आ गई। अब क्वाड्रेटिक का देखो, मैं जो कह रहा था एक रूट फिक्स हो गया कि एक रूट 2 होगा ही होगा, तो अब हम ये चाहते हैं कि इस क्वाड्रेटिक का जब ग्राफ बनाए, अब देखो एक ग्राफ तो ऐसा हो सकता है कि ये एक रूट 2 से पास हो और एक हो, तो इट शुड बी पॉजिटिव फॉर एग्जैक्टली 3 नेगेटिव इंटीग्रल एक्स। अब बेटा अगर अपवर्ड फेसिंग ग्राफ हुआ तो यहाँ पर ऐसे बहुत सारे किसी भी रूट के लिए देयर विल बी इनफाइनाइट नेगेटिव इंटीग्रल एक्स जिसके लिए फंक्शन पॉजिटिव जाएगा। इसका मतलब ग्राफ अपवर्ड फेसिंग पैराबोला नहीं हो सकता।
कंसेप्ट समझ में आया भाई? एक रूट 2 है, दूसरा रूट 3/a। अच्छा 3/a पॉजिटिव अगर हुआ, मान लो 3/a पॉजिटिव और ग्राफ ऐसा बना, तो यहाँ पर नेगेटिव इंटीग्रल एक्स कितने होंगे? बहुत इनफाइनाइट होंगे, जिसके लिए क्वाड्रेटिक की वैल्यू पॉजिटिव आएगी। रूट नेगेटिव हुआ तो भी बहुत सारे ऐसे नेगेटिव इंटीग्रल एक्स आएंगे जिसके लिए क्वाड्रेटिक जो होगा वो पॉजिटिव होगा। जबकि क्वेश्चन कह रहा है कि सिर्फ 3 इंटीजर्स होने चाहिए नेगेटिव एक्स में, ठीक है? जैसे मतलब ग्राफ इसका कंफर्म डाउनवर्ड फेसिंग पैराबोला ही होगा, जिसमें एक रूट इसका 2 होगा, यहाँ 1 आएगा, यहाँ 0 आएगा। अब ये ऐसे हमें 3 नेगेटिव इंटीग्रल वैल्यू ऑफ एक्स मिली थी, तो मतलब हमें मिलना चाहिए -1, -2 और माइनस, और ये -4। ये जो रूट है, अब देखो -1 के लिए पॉजिटिव है, -2 के लिए पॉजिटिव है, -3 के लिए पॉजिटिव है। ये रूट -3 से 4 के बीच में होना चाहिए। अगर ये -4 के और छोटा हो गया तो और नेगेटिव इंटीग्रल एक्स, 3 से ज्यादा नेगेटिव इंटीग्रल एक्स आएंगे जहां क्वाड्रेटिक पॉजिटिव होगा, सबसे पहली बात। तो एक तो चीज हमें जो समझ में आई वो ये समझ में आई कि ए जो है वो नेगेटिव होना चाहिए, लीडिंग कोफिशिएंट जो है वो नेगेटिव होना चाहिए। और जो इसका दूसरा रूट है वो कितना है बेटा? 3/, वो -3 से तो कंफर्म छोटा होना चाहिए। -3 हो सकता है क्या? नहीं हो सकता बेटा। अगर ये रूट -3 से पास करेगा तो सिर्फ -1 और 2 के लिए पॉजिटिव होगा, और -4 से ज्यादा हो सकता है। अच्छा ये -4 हुआ तो सोच के देखो, अगर ये रूट -4 भी हो गया तो -3, -2, -1 तो भी आपको 3 नेगेटिव इंटीग्रल एक्स मिलेंगे जहां क्वाड्रेटिक पॉजिटिव आएगा। इसका मतलब -4 पे इक्वालिटी आ सकती है। ये है बात इसकी। अब जैसे ही आपने रेसिप्रोकल किया बेटा, रेसिप्रोकल करते ही इनइक्वालिटी का साइन बदल जाता है। a/3 इज लेस देन इक्वल्स टू -4, -1/4 and greater than -1/3. So a is greater than -1 and less than equals to -3/4, close bracket. A belongs to. So you have been given that x की जो वैल्यूज है, जो x की वैल्यूज हैं, x इक्वल्स टू 3/, हाँ ठीक है। तो जो x की वैल्यूज आ रही है, सॉरी a की वैल्यूज हैं वो आ रही है c से, ओपन c से d। तो c की वैल्यू कितनी हो गई? c की वैल्यू हो गई -1, और d की वैल्यू कितनी हो गई? -3/4। हमसे क्या पूछा है? c² plus 16 d², c² 1 and 16 times d² that is 9/16. So the answer comes out to be 10. अगेन इंटीजर टाइप जैसे मैंने बोला, तो फाइनल आंसर इसका कितना आ गया? 10 आ गया। क्लियर है? बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। जब भी मैंने आपको बताया ऐसा लिखा हो कि फिक्स 2 इंटीग्रल्स के लिए 3 इंटीजर्स के लिए एफ एक्स पॉजिटिव है या नेगेटिव है, तो बेटा फैक्टर बनाओ या सीधा चारे निकाल के रूट निकालो। जहां तक होगा उसका एक रूट कंफर्म कांस्टेंट होगा, तभी जज कर पाएंगे कि किस इंटीजर्स, कौन से इंटीजर्स के लिए वो पॉजिटिव या नेगेटिव। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 पे आते हैं बेटा। This is also a good question. Question number 15. Let TR is a general term of an AP. TR is a general term of AP whose first term is -1/2 and common difference is 1. So your first aim is to find TR. अब TR क्या है भाई? एक AP का टर्म ही तो है। तो nth टर्म ऑफ AP का फॉर्मूला हम जानते हैं, A plus n minus 1 into D. क्लियर है? A plus n minus 1 into common difference d. So that is r minus 3/2. This is the value of tr. So what is the value of tr plus 1? That is r minus 1/2. What is the value of tr plus 2? 1 और ऐड कर दो तो tr plus half. And what is the value of tr plus 3? और 1 ऐड कर दो तो r plus 3/2. ये मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि इधर मुझे tr plus 1, tr plus 2, tr plus 3 सब दिख रहा है। ठीक है? तो जब मैं अंडर रूट ऑफ 1 प्लस इनका प्रोडक्ट निकालूंगा तो r minus 3/2 into r minus 1/2 into r plus 1/2 into r plus 3/2। इन दोनों को एक साथ मल्टीप्लाई करो, a plus b a minus b, a plus b a minus, रूट ओवर 1 plus r square minus 9/4 into r square minus 1/4। फिर अगर हम इसे मल्टीप्लाई करें तो r raised to the power 4 minus 9/4 r square minus 1/4 r square, that is 10/4 minus 10/4 मतलब 5/2 r square, और 9/16 plus 1 that is 25/16 plus 25/16। ये लिखा हुआ है बेटा स्क्वायर रूट के अंदर। तो अगर आप ध्यान से ऑब्जर्व करोगे तो इट इज अ परफेक्ट स्क्वायर ऑफ r square minus 5/4 का होल स्क्वायर का अंडर। चेक कर लो। ठीक है? तो बेटा इसका मतलब इसकी जो जनरल टर्म आ गई वो कितनी आ गई? मॉड के साथ आ गई।
तो हमें सिग्मा आर इज इक्वल टू 1 से n, मॉड का ध्यान रखेंगे, आर स्क्वायर माइनस 5/4, ये इसका सम जो है वो इससे कैलकुलेट होगा। वो कह रहा है कि इसका जो सम है वो इसके बराबर है। अच्छा, आर को 1 रखेंगे तो नेगेटिव आएगा, आर को 2 रखेंगे तो जैसे ही 2 रखोगे तो 2 का स्क्वायर 5/4 से ज्यादा हो जाएगा। इसका मतलब 2 से मॉड प्लस खुलेगा और 2 से पहले पर मॉड जो है नेगेटिव खुलेगा। तो मैं इसको कैसे लिख सकता हूँ, जब आर को मैंने 1 रखा, ठीक है, सो इट विल बिकम 5/4 माइनस आर स्क्वायर, जब आर को मैं 1 रखा, प्लस सिग्मा आर इज इक्वल टू 2 से लेकर n आर स्क्वायर माइनस 5/4, ठीक है। अच्छा, अगर देखो बेटा, व्हाट हैपेंस इज, अगर मैं इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करने के लिए आपको ऐसे बताऊं, अगर मैं यहाँ सीरीज 1 से स्टार्ट कर दूं तो उसका सम निकालना जो है मेरे लिए थोड़ा सा आसान हो जाएगा। तो मैं अगर इसमें सिग्मा आर इज इक्वल टू 1 से n आर स्क्वायर माइनस 5/4 करता हूँ, ठीक है, तो मैंने इसमें एक एक्स्ट्रा टर्म ऐड कर दी, तो सब्ट्रैक्ट करनी पड़ेगी। तो क्या मैं इसको, ठीक है, एक एक्स्ट्रा टर्म मुझे सब्ट्रैक्ट करनी पड़ेगी, तो ये आर को 1 रखने पे कितना है, आर को 1 रखने पर दिस विल कम आउट टू बी 5/4 माइनस 1, दैट इज 1/4। और यहाँ पर अगर मैंने आर को 1 रखा बेटा, तो एक एक्स्ट्रा टर्म आ रही थी, दैट इज माइनस 1/4, तो उसको एडजस्ट करने के लिए मैंने एक प्लस 1/4 आ रही है, तो ये दोनों ऐड होकर 1/2 हो जाएगा, प्लस एक हो जाएगा सिग्मा आर स्क्वायर और एक हो जाएगा सिग्मा 5/4, दैट इज 5n/4। एक्चुअली मुझे ये टर्म दिख रही है 5n/4, इस टर्म से प्लस 1/2 दिख रहा है, तो आंसर विल बी 1/2 प्लस व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ सिग्मा आर स्क्वायर, n into n plus 1 into 2n plus 1 by 6 minus 5n/4. My aim was to convert the sum in the form as it is given. तो यहाँ 1/2 आ गया। यहाँ स्टेप समझ में आया? मैंने r को 2 से n तक की बजाय 1 से n तक लिखा, तो जब मैंने r को 1 रखा था तो यहाँ माइनस 1/4 एक एक्स्ट्रा टर्म आया, तो उसको एडजस्ट करने के लिए प्लस 1/4 कर दिया। इसको तो r इक्वल टू 1 रख ही दिया मैंने इसमें, क्योंकि r को 1 रखने में मॉड नेगेटिव था, उस टर्म को अलग कर लिया, तो 1/4 1/4 1/2 हो गया, सिग्मा r स्क्वायर माइनस सिग्मा 5/4 ये बन गया। अब अगर मैं कंपेयर करता हूँ, देखो बिल्कुल सेम उसी फॉर्मेट में आ गया, तो यहाँ से मुझे a की वैल्यू 6 पता चल रही है, b की वैल्यू 4 पता चल रही है, a की वैल्यू 6, b की वैल्यू 4, और हमें a प्लस b पूछा है, तो उसका आंसर कितना हो गया बेटा, 10 आंसर इसका हो जाएगा। क्लियर है? तो अगेन दिस इज अच्छा क्वेश्चन है, पहले हमें सही से टीआर निकालना है, फिर इसको सिंप्लीफाई करना है, और उसके बाद मॉड का ध्यान रखते हुए आगे इस सीरीज का सम कैलकुलेट करना है। ओके बच्चों, अगर आपको हमारे द्वारा बनाए गए वीडियोस, हम जो उसमें आपको पढ़ा रहे हैं, वो पसंद आए, तो आप उन वीडियोस को ज़रूर शेयर करिए, लाइक करिए और शेयर करिए, ताकि वो वीडियोस ज़्यादा से ज़्यादा ज़रूरतमंद बच्चों तक पहुंच सके और वो सब भी उन वीडियोस से अपने आप का फ़ायदा जो है वो ले सकें। आप लोगों का ढेर सारा स्नेह और प्यार देखकर हमारी पूरी मोशन की टीम जो है वो बहुत मोटिवेटेड है, और हम उतने ही मोटिवेशन से आपके बेहतरमंद के लिए बहुत ही अच्छे वीडियोस बनाने की कोशिश कर रहे हैं, और हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा और बेहतर से बेहतर कंटेंट प्रोवाइड किया जा सके। अब हम नेक्स्ट 3 क्वेश्चंस जो है वो सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, हमें एक बाइक्वाड्रेटिक दे रखी है जिसके रूट्स है अल्फा बीटा गामा डेल्टा। तो एक इक्वेशन दूसरी बाइक्वाड्रेटिक जिसके रूट्स है अल्फा बीटा गामा डेल्टा, अल्फा गामा डेल्टा, अल्फा बीटा डेल्टा, उसके ये रूट्स हैं, तो हमें e माइनस डी माइनस ई माइनस बी की वैल्यू निकालनी। तो देखो, एक तो या तो हम फैक्टराइज कर सकें, रूट्स निकाल सकें, जो कि इतना आसान नहीं, और दूसरा इस टाइप के क्वेश्चंस में यूज करते हैं, उसे क्या कहते हैं बेटा, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ रूट्स। करेक्ट। अच्छा, अगर मैं आपसे इसमें प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स की बात करूं, ठीक है, ये पहले लिख लेते हैं, x की पावर 4 माइनस 11 x क्यूब प्लस 22x स्क्वायर माइनस 33x प्लस 1 इक्वल्स 0, इसके रूट्स अल्फा बीटा गामा डेल्टा है। So if I want you to find alpha beta gamma delta, माइनस प्लस माइनस प्लस, याद है ना, ये सब ऑल्टरनेट साइन चेंज होता है, तो प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स आएगा 1 के बराबर, तो अल्फा बीटा गामा हो गया 1 बाय डेल्टा, या इनफैक्ट कुछ भी मान लीजिए बीटा गामा डेल्टा निकालना है तो हो गया 1 बाय अल्फा एंड सो ऑन। सो व्हाट इज हैपनिंग इज, हमें जिस बाइक्वाड्रेटिक के रूट्स अल्फा बीटा गामा दे रखे हैं, मतलब इसके रूट्स जो हो गए, रूट्स ऑफ न्यू बाइक्वाड्रेटिक, क्या होगा बेटा, वो 1 बाय अल्फा 1 बाय बीटा 1 बाय गामा 1 बाय डेल्टा।
तो अगर हमें नई बाई क्वाड्रेटिक के रूट्स पता है 1 बाय अल्फा 1 बाय बीटा 1 बाय गामा 1 बाय डेल्टा, तो मैं इससे प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स से जो है कैलकुलेट कर पा रहा हूँ। तो मैं अगर t को 1 बाय अल्फा मान लूं या 1 बाय बीटा 1 बाय गामा कुछ भी मान लूं, तो अल्फा हो गया 1 बाय t के बराबर, और अल्फा जो था इस बाई क्वाड्रेटिक का रूट था। तो अगर मैं इसमें x की जगह 1 बाई t से रिप्लेस करूं, 1 अपॉन टी रेज पर 4 माइनस 11 अपॉन टी क्यूब प्लस 22 अपॉन टी स्क्वायर माइनस 33 अपॉन टी प्लस 1 इक्वल 0। तो एलसीएम लेने पर आई गेट अ बाई क्वाड्रेटिक टी रेज पर 4 माइनस 33 टी क्यूब प्लस 22 टी स्क्वायर माइनस 11 टी प्लस 1 इक्वल 0। तो बेटा यही वो बाई क्वाड्रेटिक है फाइनली जो मुझे चाहिए, इसको और इसको, क्योंकि यहाँ x की पावर 4 का कोफिशिएंट 1, t लिखो या x लिखो बात एक ही है, x की पावर 4 का कोफिशिएंट 1, तो डायरेक्ट कंपेयर कर सकता हूं मैं। तो p की वैल्यू हो गई -33, c की वैल्यू हो गई 22, d की वैल्यू -11 और e की वैल्यू हो गई 1। बस इन सब की वैल्यूज को बेटा इसमें रख दो और जो फाइनल आंसर है वो कैलकुलेट करो। तो जो फाइनल आंसर है बेटा इसका वो आता है 23। इंटीजर है, ये भी इंटीजर टाइप था क्वेश्चन, तो इसका आंसर है 23। ठीक है, तो ये चीज जैसी क्लिक करेगी हम प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स, उससे ट्रांसफॉर्मेशन पे जहाँ पहुंचना और सॉल्व करना हमारे लिए आसान हो जाता है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। क्या कह रहे हैं 17 क्वेश्चन में? द नंबर ऑफ रियल और कॉम्प्लेक्स सोल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन, एक इक्वेशन के रियल या कॉम्प्लेक्स सोल्यूशंस कितने हो सकते हैं। ठीक है, तो रियल या कॉम्प्लेक्स सोल्यूशंस फाइंड करने के लिए मैं दो केस में इसको ब्रेक कर लेता हूँ। ठीक है, एक बार मैं मान लेता हूँ x रियल है और एक बार मैं मान लूंगा x इमेजिनरी नंबर है, कॉम्प्लेक्स नंबर है। 17 केस 1, लेट x belongs to real number. Now I hope you know that mod x square और x square एक ही बात है, क्योंकि यहाँ mod x लिखा हुआ है, यहाँ x square लिखा है। मैं इस x square को अगर mod x whole square minus 6 mod x प्लस 8 इक्वल टू 0 लिखूं तो मेरे लिए फैक्टर करना बहुत आसान हो जाएगा। x mod x minus 2 into mod x minus 4 equals to 0. So यहाँ से I will get x equals to plus minus 2, x equals to plus minus 4. तो टोटल कितने आंसर मिल गए बेटा मेरे को? टोटल 4 रियल सॉल्यूशंस मिल गए, 4 real solutions. Now we have to make a case for a complex number of for complex solutions कि उसकी कितना होगा. So now let x is of the form alpha plus iota beta and beta should not be 0. This I am assuming beta क्योंकि 0 हो गया तो बेटा x रियल हो जाएगा, x रियल हो गया तो वो मैं ऑलरेडी सॉल्व कर चुका हूँ। तो on putting the value of x as alpha plus iota beta in this equation, I'll get alpha plus iota beta whole square minus 6. Now mod alpha, it is under root of alpha square plus beta square, complex number का mod, plus 8 is equal to 0. So alpha square minus beta square minus 6 under root alpha square plus beta square plus 8 minus plus 2 alpha iota beta equals to 0. So this is a complex number which is equals to 0. तो रियल एंड इमेजिनरी पार्ट को मैं इक्वेट करूंगा, तो सबसे पहले अल्फा बीटा 0 आएगा। या मैं ऑलरेडी कसम खा चुका हूँ बीटा 0 नहीं हो सकता, इसका मतलब कंफर्म अल्फा 0 होगा। और अल्फा 0 होगा इसका मतलब ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर होगा ये प्योरली इमेजिनरी टाइप का होगा। अच्छा, अगर अल्फा 0 होगा तो माइनस बीटा स्क्वायर माइनस 6 अंडर रूट बीटा, अंडर रूट बीटा मतलब प्लस माइनस बीटा प्लस 8 इज इक्वल टू 0। क्लियर है? तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई बेटा बीटा स्क्वायर प्लस माइनस 6 बीटा माइनस 8 इज इक्वल टू 0। सो यू कैन फाइंड द वैल्यू। अच्छा, बीटा खुद ध्यान रखेंगे, अल्फा बीटा रियल होते हैं, तो यहाँ से बीटा रियल आएगा, क्वाड्रेटिक आ रही है ना, तो यू विल गेट द वैल्यूज ऑफ बीटा फ्रॉम हियर। क्लियर? हाउ मेनी वैल्यूज ऑफ बीटा यू विल गेट फ्रॉम हियर? हाउ मेनी वैल्यूज ऑफ बीटा यू विल बी गेटिंग फ्रॉम हियर? हाँ, तो हाउ मेनी वैल्यूज ऑफ बीटा वी विल बी गेटिंग? एक्चुअली ये जो प्लस माइनस है बेटा, ये दो केस को कंसीडर करते हुए हैं, बीटा ग्रेटर देन 0 एंड बीटा लेस देन 0। सो व्हेन यू विल अप्लाई श्रीधराचार्य, भाई एक बार प्लस केस से क्वाड्रेटिक बनेगी, एक बार माइनस केस से क्वाड्रेटिक बनेगी, उससे बीटा की वैसे तो दो दो मतलब 4 वैल्यूज आएंगी, पर जब बीटा पॉजिटिव होगा तो मैं ये जो मॉड साइन था ये प्लस साइन से खुला था, ठीक है, और मॉड प्लस साइन से खुला था, तो सिर्फ जो पॉजिटिव वाला आंसर होगा बोले तो एक वैल्यू वहां से आएगी, और जब बीटा नेगेटिव लेंगे तो एक वैल्यू वहां से आएगी। यहाँ से टोटल 2 रूट्स और मिलेंगे। ठीक है ना? अब आप कैलकुलेशन करके देखिएगा, तो 4 सोल्यूशन तो यहाँ से आ गए और 2 यहाँ से आ गए।
ये क्या समझ में आ गया ना, अल्फा तो 0 हो ही गया और फिर बीटा में क्वाड्रेटिक आ गई। अच्छा, अंडर रूट बीटा स्क्वायर मॉड बीटा आया, अब मॉड बीटा आया तो प्लस बीटा हो गया माइनस बीटा, डिपेंड करता है बीटा पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। तो बीटा पॉजिटिव से क्वाड्रेटिक बनी, उससे रूट्स 2 आए, एक रिजेक्ट हो जाएगा पॉजिटिव वाला लेके, बीटा नेगेटिव से फिर 2 रूट आएंगे, एक रिजेक्ट हो जाएगा नेगेटिव वाला लेके। तो 2 सोल्यूशन यहाँ से और 4 सोल्यूशन यहाँ से, तो टोटल सोल्यूशन कितने हो गए बेटा, 6 टोटल सोल्यूशन हो गए। क्लियर है, बढ़िया है। नंबर ऑफ सोल्यूशंस कई बार काउंट करने में गड़बड़ हो जाती है, कई बार ये भूल जाते हैं, या कई बार यहाँ से भी 4 लिख लेते हैं और 4 यहाँ से लिख लेते हैं तो 8 आंसर दे देते हैं। तो फाइनल आंसर क्या है वो ध्यान से सोचना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है ना, बहुत ध्यान से आपने ये क्वेश्चन जो है सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 18 और कैसे सॉल्व होगा ये भी आपको देखना है। The sum of maximum and minimum integral value of a for which the given equation has at least one real root. This equation has at least one real root. X square plus x plus 2 का whole square, x square plus x plus 1 into x square plus x plus 2, या x square plus x plus 1 का whole square. तो बेसिकली ये a square ab b square जैसा लिखा हुआ है। तो अगर मैं इस पूरी इक्वेशन को डिवाइड कर दूं एक्स स्क्वायर प्लस 1 के होल स्क्वायर से, तो ये इक्वेशन मेरे को कुछ ऐसी दिखेगी बेटा, एक्स स्क्वायर प्लस 2 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस a माइनस 3 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 2 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस a minus 4 is equals to 0. Now you can assume x square plus x plus 2 upon x square plus x plus 1 as t, or you can write it as 1 plus 1 upon x square plus x plus 1. लिख सकते हैं क्या बेटा ऐसे? मैंने ऊपर 2 को 1 plus 1 लिखा, डिवाइड किया x square plus x plus 1 से, आ गया। बेसिकली आई नीड टू फाइंड द रेंज ऑफ t, कि t की रेंज क्या हो। अब ये जो x square plus x plus 1 है, इसका ग्राफ कुछ ऐसा होगा, इसका जो x कोऑर्डिनेट है वर्टेक्स का, ये -1/2 पर आएगा, और इसका y कोऑर्डिनेट कितना आएगा बेटा, x को -1/2 रखने पर आएगा 1/4 -1/2 प्लस 1 -1/4 प्लस 1 दैट इज 3/4। तो इसकी जो रेंज है 3/4 से इंफिनिटी है, दैट इज 1 प्लस 1 अपॉन 3/4 टू इंफिनिटी। तो ये हो गई 1 प्लस 1 बाई इंफिनिटी 0 से लेकर 4/3, so 1 से लेके 7/3, open 1 से close 7/3 is the range of t। हमें t की रेंज पता चल गई कि t की रेंज 1 से 7/3। अच्छा, ऐसे करते अब ये जो क्वाड्रेटिक है, ये क्वाड्रेटिक बन गई t स्क्वायर माइनस a माइनस 3 इंटू टी प्लस a माइनस 4 इज इक्वल टू 0। अब हम कोशिश करें कि क्या ये फैक्टराइज तो नहीं हो रहा है, कहीं ऐसा तो नहीं हो रहा है कि ये जो है ये फैक्टराइज हो रहा हो। अच्छा, ये फैक्टराइज हो रहा है या नहीं हो रहा, उसके लिए व्हाट वी हैव टू डू, हम श्रीधराचार्य लगा सकते हैं, या हम ट्राई भी कर सकते हैं कि इसके फैक्टर्स जो है वो क्या बन रहे हैं। जैसे हिट एंड ट्रायल से मान लीजिए मैंने टी को 1 रखा, तो 1 माइनस ए, जस्ट मैं चेक कर रहा हूँ, 1 माइनस ए प्लस 3t प्लस ए माइनस 4, तो ए से ए कट जाएगा, ठीक है, और भाई ए से ए ऐसे दो नहीं चेक करो है ना, टी को 1 जो है वो रूट आ रहा है नहीं आ रहा, तो हमें श्रीधराचार्य लगाकर ही जो है आगे इसमें प्रोसीड करना पड़ेगा, ठीक है। तो हमें चेक तो करना ही पड़ेगा इसके, या तो श्रीधराचार्य लगाएं, और जैसे टी को या टी को 1 सेटिस्फाई कर रहा है, शायद मैं कैलकुलेशन गड़बड़ कर दी, टी को 1 रखने पे 1 माइनस ए प्लस 3 प्लस ए माइनस 4, अरे हाँ कर तो रहा है, सॉरी मैंने यहाँ 3t लिख दिया था, टी को तो 1 रखा है ना, ये कैंसिल हो गया, तो बेटा इसका एक फैक्टर तो कितना हो गया, t माइनस 1, तो प्रोडक्ट ऑफ द रूट से मैं दूसरा फैक्टर लिखूंगा इसका t माइनस a माइनस 4 इज इक्वल टू 0। अब क्वेश्चन कह रहा है दिस इक्वेशन हैज एटलीस्ट वन रियल रूट। अब देखो या तो t की वैल्यू 1 आएगी, पर अगर मैं रेंज से चेक करूं तो 1 इंक्लूड नहीं हो सकता है। तो अब आंसर तभी आएगा कि जब ये जो दूसरा रूट है, इसका दूसरा रूट कितना है, a माइनस 4, रियल सोल्यूशन तब देगा जब a माइनस 4 t की रेंज में होगा। अब मैं x को भूल गया हूँ बेटा, इसका रियल सोल्यूशन तब आएगा जब इस एक्सप्रेशन की वैल्यू या t की वैल्यू इसकी रेंज में थी, और उसकी रेंज है 1 से 7/3, तो इसका मतलब a माइनस 4 1 से तो ज्यादा और 7/3 से कम होना चाहिए। तो a की वैल्यू 5 से तो ज्यादा होनी चाहिए, और 7/3 प्लस 4 4 से 12 12 प्लस 19/3 से कम होनी चाहिए। दिस इज द इंटरवल ऑफ ए। अब इस इंटरवल में 19/3 मतलब 16 पॉइंट समथिंग समथिंग,
तो ओपन 5 से 16 पॉइंट समथिंग समथिंग पर ए का इंटीजर सिर्फ एक ही आ रहा है और वो आ रहा है 6, क्योंकि क्वेश्चन में इंटीग्रल वैल्यू ऑफ ए पूछा है। तो बेटा मैक्सिमम और मिनिमम दोनों ए की वैल्यू 6 ही हो गई। अब ए की वैल्यू अगर 6 हो गई तो उसका जो सम है, सम ऑफ इंटीग्रल वैल्यूज ऑफ ए, वो कितना हो गया? 12 हो गया। ठीक है, ये भी कई बार कंफ्यूजन आता है। अब ए जब इंटीजर आ ही एक रहा है तो मिनिमम मैक्सिमम दोनों ये कंसीडर करने पड़ेंगे। समझ में आया क्या किया मैंने? पहले इसको क्वाड्रेटिक में कैसे कन्वर्ट किया, एक्स स्क्वायर प्लस वन, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन के होल स्क्वायर से डिवाइड किया, इस पूरे को टी मान लिया, टी की मैंने रेंज निकाल ली अकॉर्डिंग टू दिस एक्सप्रेशन। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन की रेंज है 3/4 से इंफिनिटी, सो 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वन की रेंज हो गई 0 से 4/3, उसमें 1 ऐड कर दिया तो टी की रेंज आ गई। टी में जो क्वाड्रेटिक आई वो फैक्टराइजेबल थी, फैक्टराइज हो गई, एक रूट 1 आया, एक 4 आया। अब टी 1 हो नहीं सकता है, या ये वाला एक्सप्रेशन 1 हो नहीं सकता है, तो एक रियल रूट तभी आएगा जब इसका दूसरा रूट इसकी रेंज में लाई करेगा। तो इसकी रेंज में लाई कराते ही हमने ए देखा, ए सिर्फ एक इंटीजर आया 6, उससे हमने सम ऑफ द रूट्स निकाल लिया। ठीक है, नेक्स्ट 2 प्रॉब्लम्स मोर, ये भी इंटीजर टाइप है। वी हैव टू फाइंड द सम ऑफ 24 टर्म्स ऑफ द सीरीज। ऐसे सीरीज दे रखी 3, 6, 9, 27, 4, 8, 16, 64, 5, 10, 25, 125। अब यार ये सीरीज अगर हम डायरेक्ट ऐसे रिलेशन फाइंड करने की कोशिश करें तो नहीं होगा। बहुत खूबसूरती से, बहुत ट्रिक करके इन्होंने जो है सीरीज लिखी। तो ये कैसे सीरीज लिखी है जरा हम ऑब्जर्व करें। तो बेटा ये जो है ना, ये 4 अलग अलग सीरीज के टर्म्स इसमें दे रखे हैं, इसमें 4 अलग अलग सीरीज दे रखे हैं। जैसे मैं आपको पहला जो है मार्क करके बताता हूँ, टिक मार रहा हूँ 3, 4 के बाद देखो फिर 4, फिर 4 के बाद देखो 5, 3, 4, 5, 6 पैटर्न हमें ऑब्जर्व करना है। तो जो सीरीज 1 है, अच्छा टोटल जो कि 24 टर्म है, और ऐसी 4 सीरीज में आपको बोल रहा हूँ, तो हर सीरीज में 6 टर्म्स होंगे। तो पहली सीरीज हो गई 3 प्लस 4 प्लस 5 प्लस 6 प्लस 7 प्लस 8, 3 प्लस 4 प्लस 5 प्लस 6 प्लस 7 प्लस 8, डायरेक्टली जोड़ लो 7, 7 और 5 12, 12 और 6 12 और 6 18, 18 और 8, 18 और 8 26, 26 and 7 33. The sum of this series is 33. The second series I will take 6 into consideration. After 6 I will take 8 into consideration. After that I'll take 10 into consideration. So 6 plus 8 plus 10 plus 12 plus 14 plus 16. If you take 2 common, ऊपर वाली सीरीज आ जाएगी, तो 2s1 इसका सम हो गया, 2s1 मतलब इसका सम हो गया 66। थर्ड टर्म, थर्ड सीरीज 9 से स्टार्ट करें, 9, 9 के बाद 16, ऊपर एरो मार्क कर रहा हूँ, 16 के बाद 25, 9 प्लस 16 प्लस 25। Next term, observe it. This is 3 square, this is 4 square, this is 5 square. Next will be 36, next will be 49, next will be 64. Clear again? This is what we have to find. 3 square plus 16 plus 25, 36, 49, 64. You can find it. And the fourth series, I will make you observe it. 27, 27. The next term, 64. The next term, 125. So what will be the next term? This is 3 cube, 4 cube, 5 cube, 6 cube, 216, 7 cube, 8 cube. So you can find the sum of this series, and then you can find the total sum also. I am telling you the answer, 1585 will be the answer. So it's more of a logical and an observation type of a question कि कैसे हम इसमें जो है सीरीज का सम निकालेंगे। 4 पार्ट्स में ब्रेक किया, हर पार्ट में 6 टर्म्स है, 6 4 24, पैटर्न 4 के गैप में ऑब्जर्व करो। 1 is 3 4, next is 3 into 2, 4 into 2, next is 3 square, 4 square, 5 square, next 3 cube, 4 cube, 5 cube and so on. Total find sum karo, you get 1585 as your answer. Okay, now last one more question, question number 20. You have been given S 399 into 1, 397 into 3, 395 into 5 up till 1 into 399. If lambda is the sum of digits of S, then greatest integer of lambda by 3. तो पहले हमें S कैलकुलेट करना है। पैटर्न आप देख पाओगे 1 3 5 1 3 5। rth टर्म अगर मैं इसके लिखूं तो 2r minus 1 ऑड टर्म्स, और r से ही रिलेटेड 399। ठीक है, r से रिलेटेड फिर 2 और कम हो गया, तो 401 minus 2r। r को 1 रखूंगा तो मेरे को 399 मिलता है, 401 minus 2r, 401 minus 4 and so on. So this is the general term. So the sum of n terms of this series is sigma 2r minus 1 into 401 minus 2r, where r varies from 1 से लेकर
R को क्या रखेंगे भाई, आई थिंक यू विल कीप 200, तो 200 इंटू 2 क्लियर है ना, 399 आ जाएगा। ओके, so this sum how will you calculate, you just multiply, क्लियर। तो जैसे 802R माइनस 401 माइनस 4R² प्लस 2R का सिग्मा हो गया, तो 804R माइनस 401 इसका सिग्मा बेटा माइनस 4R² का समेशन। नाउ इट्स ऑल कैलकुलेशंस दैट यू विल परफॉर्म हियर। सिग्मा R का फॉर्मूला, सिग्मा R² का फॉर्मूला एंड R को 200 में रखना है। So I have written the value of it. Its value come out to be 5 on solving 5,333,40. So this is what sum denotes. Now lambda is the sum of digits of S. So what will be the value of lambda? Let us check. 5, 3, 8, 8 and 6, 14, 14 and 4, 18. ठीक है, so what will be the greatest integer of lambda by 3? It will come out to be 6. Okay, so the correct answer for this question comes out to be 6. ठीक है, तो बेटा ये कुछ सीरीज से रिलेटेड और क्वाड्रेटिक से रिलेटेड क्वेश्चंस हो गए। आई होप आपका रिवीजन हुआ होगा कुछ, है ना। क्वेश्चंस को ट्राई, जैसे मैंने स्टार्टिंग में बोला है, ट्राई खुद करिएगा, और आफ्टर दैट थोड़ा बहुत जिसमें अटके नहीं समझ में आए उसके मैंने आपको सॉल्यूशंस बताए। ओके बच्चों, अगर आप चाहते हैं कि आपको हमारे द्वारा पढ़ाए गए वीडियोस, स्टडी मटेरियल या और भी कुछ चीज़ों की ज़रूरत है वो आप तक पहुंचे, तो आप नंबर 18002121 वापस रिपीट करता हूं, 18002121 पर कॉल करिए। कोई भी क्वेरी है आप इस पे कॉल करिए, आपकी क्वेरी का पूरा समाधान मिलेगा।